all the members present over here in the today's webinar, and the new initiative taken by our respected chairman of CIRC, Atul Mehrotra ji, the Women on Wednesday, and we plan that Women on Wednesday will be floated in every month till 2023. Lokesh, your voice is not clear. It is cracking. Yes, I think there is some network issue. Maybe. Okay, continue. तो जो ये वुमेन ऑन वेडनेसडे सर ने जो प्रोग्राम बनाया है, हालांकि पास्ट चेयरमैन ने भी प्रोग्राम इसको स्टार्ट किया था, लेकिन उसी को हमारे सर ने बोला कि ये बीच में 1 महीने रुक गया था, तो सर ने इसको बोला स्टार्ट करते हैं और 2023 तक जब तक मैं चेयरमैन रहूंगा हर बुधवार को मुझे इस प्रोग्राम को फ्लोट करना है, ताकि वुमेन को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस रहे जितनी सारे मेंबर्स को, क्योंकि उनके जो व्यूज है वो प्रैक्टिस को भी संभालती है, सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। और आज से हमने उसको वापस स्टार्ट किया है, इसको हम हर वेडनेसडे को वापस स्टार्ट करेंगे ताकि वुमेन का भी पूरा पार्टिसिपेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर रहे, उनके जो व्यूज है वो भी सारे मेंबर्स को पता लगे। मैं ज्यादा डिले नहीं करते हुए हम सारे मेंबर्स का वापस हार्दिक स्वागत करता हूं और आगे के सेशन के लिए आज के मॉडरेटर सी ईशा गुप्ता जी को हैंड ओवर करता हूं। ओवर टू यू मैम। थैंक यू लोकेश सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम निशा जी। This is the first program you have, I think, in virtual mode for CA Society. So welcome you. Thank you. Secondly, I would like to welcome our CCM Abhay Chachar ji, and I would also like to welcome Chairman CIRC Atul Mehrotra ji. Also, the Secretary CA Lokesh Maheshwari ji, the Secretary CIRC. So, good evening, everyone. Let's start this session. I would, before starting this session, I would like our CCM, our Central Council member, Abhay Kumar Chachar ji, to share few words. Okay, you want me to do first, or probably the chairman would take up the first? Isha, first I will welcome to our CCM and... Okay, sir. So I would like to welcome Chairman CIRC Atul Mehrotra ji. Thank you, Isha, the moderator of today's program. Very respected CCM Abhay Chachar ji from Bhopal, my young and energetic Secretary CIRC Lokesh Maheshwari ji, other office bearers of CIRC, and the learned speaker Nisha ji. And what a coincidence is there, Nisha and Isha. It's just a coincidence. I just minded that Nisha and Isha both are like similar names, but it is a chance. So, and respected seniors, my colleagues, boys and girls, I heartily welcome on behalf of CIRC and my own behalf with this very important topic today. The new opportunities for CAs in new startup ecosystem. And I am sure that after today's program, we will be having few more opportunities or the ways and what is the future of our profession for a period of for next 10 years. We are very fortunate enough that our CCM is here, and he is a very hard-working Central Council member from our region itself. And I know that he is working, though it is called 24/7, but at least 16 hours he is working. And he is willing, he is doing, he is dedicated for our, especially young members and for students as well. So I am sure that today's program will be beneficial for all of us who are with us. And thereafter, this video will be uploaded on CIRC site, and our members may go through thereafter also. The two very important things are there, that Azadi Ka Amrit Mahotsav is being celebrated by our central government, by our ICI, by our CIRC, or even branches. So we are fortunate that we are in the year which is celebrating the 75th year as Azadi Mahotsav,
Amrit Mahotsav. So your support and your guidance from our seniors is always required in this because we have planned, our secretary has worked very hard and we have planned 75 programs for 75 days starting from 2nd of June till 15th August 2022. So CCM sir, it's a great pleasure and your guidance and your support will also be needed for that mission of our CIRC, 75 days, 75 programs. And World Congress of Accountants is going to be held. I already requested our members in each and every forum that if we want to go through the bigger picture of our profession, considering the global and economy of our country as well, so we should register ourselves for that World Congress of Accountants, which is going to be held in Mumbai itself from 18th to 21st November this year only. So these are the two major things which I wanted to share with you. And now I think we should move ahead. And now I request our moderator of today's program to please go ahead. Thank you, and once again welcome all of you. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Atulji. In this program, I really feel proud today to be a part of this virtual CP meeting organized by CIRC of ICAI on the theme WoW, that is Women on Wednesday. This is the first of its program organized by CIRC. In today's world, women are carving a Nike, not even in professional fields, but also their expertise in the personal levels also. So today, women CA are also constituting basically more than 25% of Indian CA fraternity, which is a huge number. And this is a really great initiative by CIRC for organizing women-focused programs. So thank you, Atulji, for the same. Now, next, I would like to invite our Central Council member, CA Abhay Kumar Chacharji, for his remarks. Thank you. Thank you so much, Isha. And thanks for moderating this very important program, Women on Wednesday. And when we have speaker not from Central region, but from Southern region, and it's a great opportunity for all the participants to listen to the experience of CA Nisha Dhanuka ji, who's the speaker today. And I'm sure with her experience in field of startup, the opportunities with chartered accountants can explore, right from the formation till planning, till assisting, and even in ensuring compliances. I think that is where our role would be very key. So welcome Nisha ji in CIRC Women on Wednesday program on behalf of CIRC. I congratulate team CIRC, Atul Mehrotra, the chairman of CIRC, Lokesh Maheshwari, for taking this initiative. And I was, Atulji, to be very honest, I was waiting that when will you start this Women on Wednesday, because this was there last year and we had regular programs. And I think you've not, it's better, do it than never. So you've started, which is very good initiative. And I think nothing better than having virtual, because you can connect to women across region and even outside. And I think it's a great opportunity. And I'm sure you'll invite good speakers. One of them we have today, and we'll have many more speakers on each Wednesday on different topics. And it's a great opportunity. I also welcome the participants who will be listening to the knowledge of Nisha ji and what wisdom she carries and her experience in startup. So great opportunity for all of us to listen to her, and a good initiative from CIRC. Just a few things about startup, which I know my experiences. Last 20 years, in fact, 2 decades, we've been hearing about startups regularly. But I believe this has gained more popularity since last 1 decade, last 10 years, where, there are a lot of opportunities which has come up, more particularly when I talk about the government involvement, government benefits, the income tax benefits, the ease in process of formation of startups, and where, the chartered accountant role is to be played. So if you talk about, I was just reading it somewhere that 21 unicorns we have in the country, and we were among now the top 3 countries after China and US. So we have 21 billion companies which are in startup, and
I think it's you can say that one of the role which CA has played is very important in bringing them to that level, and we can definitely ensure, in terms of compliances, in terms of doing investments, getting connected to various other small startups when you have an incubators or accelerators, who are actually doing so well. So a lot of opportunities CA has when you have an experience in financial management, other compliance related areas where you are an expert, and you would definitely, play a very big role. And I believe it's a very, important role. And if you take it as an opportunity, I was telling Nishaji that, there are a lot of cities which are tier 2 or even small cities where members are not aware that how, we can encourage our existing clients to form startups, how we can ask them to take benefits in their income tax, or what are the schemes available from government, because even government has been encouraging startups regularly. So I think it's a good opportunity that we have you today, and members would listen and would really be benefited. Thank you, CIRC, for initiating this program, and I certainly wish this virtual webinar a successful webinar, and we'll have many more such programs to come. And just to congratulate the chairman on 75 days, 75 programs, that's a very good initiative, Chairman and Secretary Lokeshji. And what is important is, like we have also started this financial and tax literacy programs across India. Now, Government of India, I'll just take a minute more. Government of India, has, asked the Institute of Chartered Accountants and given us a date on 8th of June 2022 as a day to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav. So under the financial and tax literacy, which we started a group last year, I have been now the deputy convener of the group. So we have been encouraging all the branches, regional councils, chapters that you organize financial and tax literacy programs across India, and if the participants who are here today, they would see that we have also tied up with Radio Mirchi 98.3. Now from 28th till 14 days, 28th till next 14 days, we'll have regular, jingles which are played on these Radio Mirchi and across India in different languages. So best part about is that 12 languages we'll be playing jingles, and it would be about 33 seconds. It would be regularly played by 98.3. So that is an initiative which we have taken from ICI. And of course, a lot of programs been organized by branches, and a lot of, photographs, events have been circulated, whatever they have done till date from 21st till today, and even doing up to 7th. And we have a one-day program on 8th, which will be a national webinar, which will be done live from Delhi on 8th of June, which will be by the Institute head office and would be live through webinar across India. That is the date Government of India has given us to celebrate the financial tax literacy as Azadi Ka Amrit Mahotsav. So this was about that. And second, of course, Chairman mentioned about the World Congress of Accountant, very important. And I sincerely request participants, to can join physically, very good, but otherwise it's in hybrid mode. Please do join the conference, whether physical or hybrid, but be part of this important first ever conference being held in India after 118 years. So you can imagine then how important this is for each chartered accountants, because first time ever been hosted by ICI under IFAC, and this is held at Geo World Convention Center, which is from 18th November to 21st November. So hybrid mode. There is a website of WCAO, wcao.ici.org. You can register also from there, and there is a benefit up to 30th of June. So every member who is here today, or even your colleagues, friends, group discount also has been initiated up to 30th June. So a lot of experts coming across world, more than 135 countries participating, more than 100 speakers. So you can say it's a gala event, and first time ever could be held by India, hosted by India. So, and we probably would having a very soon consent of our Honorable Prime Minister to inaugurate this very important Congress of Accountants. So this was about WCAO, and thank you so much, Chairman, Vice, and the Secretary, and Isha for giving me this opportunity. It's a pleasure to be here on any program of CIRC or of ICI. So thank you so much, and I wish this program a grand success. Thank you so much. Thank you. Thank you.
सर इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक हमने पूरा सीए वीक सीआईआरसी के अंडर प्लान किया है। उसके अंदर हमने पूरा जो एक दिन है वो टैक्स लिटरेसी प्रोग्राम को दिया है, ताकि जितने भी जो बाहर के लोग हैं, क्योंकि सीए डे को हमने इस हिसाब से बनाया कि हम सारी ब्रांचेस को भी ये कहेंगे कि ब्रांड बिल्डिंग वाला काम भी वहां हो, तो जितने भी ब्रांचेस है वो भी अपने लोगों को जोड़े, वहां के जो लोकल टैक्स पेयर्स है उनको बुलाए अपने यहाँ पर, उनको भी फेलिसिटेट करें, जो अच्छे टैक्स पेयर्स उनका फेलिसिटेशन भी करें और लोगों को समझाए भी सही टैक्स के लिए। तो एक पर्टिकुलर डे हमने केवल इसके लिए रिजर्व किया है, ताकि जो व्यापारी वर्ग है या जो बिजनेस क्लास है या इंडस्ट्री वाले, उनके साथ भी हमारा कोऑर्डिनेशन पूरा रहे। तो एक दिन हमने इसके लिए प्लान किया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Over to Isha. Thank you, Lokesh ji. Thank you, Abhay sir, for such good words. And now, moving further, I would like to invite CA Varnika Gupta to have introduction of the speaker. Thank you, Isha. Good evening, everyone. So it gives me immense pleasure to introduce our speaker for the day, Ms. Nisha Dhanuka. First of all, I'd like to thank her for accepting our invitation. It must have been very difficult for her to take time out during the middle of the week. Nisha is a chartered accountant and a company secretary. She was a rank holder in both courses. She is also an MBA in finance, a certified NLP practitioner, and an emotional intelligence practitioner. Her list of awards and recognition is endless, which includes securing a gold medal for second highest marks in Eastern region in chartered accountancy, excellence award during her MBA for maintaining a CGPA of 10 for 4 consecutive terms, All India Business Rankers Award 2018, chosen for Goldman Sachs 10K Women Entrepreneurs Program at IIMS Bangalore, chosen for the Women Ambassador Program by ISB Hyderabad, was declared Women Entrepreneur of the Year 2019 by FKCC. She has also been featured as top 10 inspiring women entrepreneurs by an online magazine, She Rules, and is amongst the top 10 upcoming CEO in the CEO Insights magazine. Nisha has co-founded C2X and Quinfin. She is extremely passionate about students and their employability skill development. Nisha spearheads a very efficient in-house content development team, along with more than 100 plus trainers pan-India with her business development and marketing prowess. Now, without taking much time, I'd like to invite Ms. Nisha Dhanuka for her deliberation. Thank you. Thanks, Varnika. Thank you for the very warm welcome. First of all, my heartfelt thanks to CIRC of ICAI. Thank you, Abhay-ji. Thank you, Atul-ji, Lokesh-ji, and Isha Gupta for having me today. And I welcome all the participants. I see a big number there, so thank you for taking out time. And I hope I do justice to the time given. We have approximately 100 minutes, and I will try to do justice to those 100 minutes with whatever limited knowledge that I have. So सबसे पहले I think ये my first question, Isha, to you is ये interactive session नहीं है, ये एक webinar के format में है, right? Nisha, this is a webinar, but there will be a questionnaire round at the end of the session. ठीक है, perfect. ठीक है, thanks. So I think बहुत important है कि आज हमने ये topic select क्यों किया है? What makes us to speak about this topic? आज क्यों हम टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम साथ में आके इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं? जैसा कि अभय जी ने ऑलरेडी एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि जो हम ग्रोथ देख रहे हैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में, एंड ऑफ कोर्स जहां पर इतना कोई इकोसिस्टम ग्रो हो रहा है तो वहां पे मनी है, वहां नंबर्स है, और जहां भी मनी है, नंबर्स है, कंप्लायंसेस है, बाय डिफॉल्ट सीएस को तो आना ही है। तो अब ऑब्वियसली जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे, एक ऑर्थोडॉक्स जो एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्सपेक्टेशन रहती है, और एक स्टार्टअप वर्ल्ड एक अपने आप में डिफरेंट इकोसिस्टम है, तो उसमें हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम कहाँ उनके अपने क्लाइंट के साथ पार्टनर कर सकते हैं, कहाँ हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये पूरा सेशन उसके बारे में आज रहेगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है, वी आर गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन आंसर राउंड सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक हम सीए हमारे नंबर्स बहुत मैटर करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज हम स्टार्टअप्स के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 2016-17 में इन द ईयर 2016-17
द नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स, मैंने ऐसे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप वो स्टार्टअप जो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके उनको एक स्टार्टअप्स का ओहदा दे दिया, उनको एक रिकॉग्नाइज कर दिया है. दे वर अराउंड अप्रोक्सीमेटली 726 to 750, 700 750 स्टार्टअप्स हुआ करते थे इन 2016 and 17. Now वही नंबर अगर मैं आज देखूं as of March 2022, you would be surprised, the number is around 65,861. Now this is a number that I have taken from the website, startup website पे आप लोग जाके देख सकते हो, ये नंबर वहां से लिया है. So from 750 to 65,000, you can see the number of startup that has gone up, and that's why it becomes all the very important to know what role VCAs can play in it. Now, और ये नंबर ऐसा नहीं है कि ये स्टॉप हो रहा है. मार्च से अगर मैं मई का नंबर लूं, तो मई आज हम 1 जून में, और मई 2022 का अगर नंबर लूं, तो ये नंबर 65,000 से 69,000 जा चुका है. सो इन अ स्पैन ऑफ 2 months हमने 4,000 स्टार्टअप्स और ऐड कर दिए. तो the way startup is growing, it's very important कि हमारा रोल क्या है, हम कैसे उनके साथ पार्टनर कर सकते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी स्टार्टअप और एनी ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. कहीं ना कहीं हम उनके साथ पार्टनर करना ही पड़ता है. लेकिन स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारा इंपॉर्टेंस, हमारा काम और ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज जो इसमें जो फाउंडर्स होते हैं, जो हम को फाउंडर्स बोलते हैं या फाउंडर्स बोलते हैं, अगर आप उनका प्रोफाइलिंग करोगे, मैंने ऐसे प्रोफाइलिंग, आप उनका जाके एजुकेशन देखोगे, आप उनको देखोगे कि वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, तो आप खुद देखोगे कि वो फाइनेंस इंडस्ट्री से बहुत कम आते हैं. वो मेनली होते हैं टेकीज, वो होते हैं IIT से, वो होते हैं इंजीनियर्स होते हैं. और स्टार्टअप इंडस्ट्री का वेरी फैक्ट इज दैट यू नीड टू हैव अ प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हिच हैव टेक इन्वॉल्वड इन इट. तो ये इनके लिए ये अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज तो बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन जहां पे द मोमेंट दे हैव टू टॉक अबाउट अकाउंट्स एंड फाइनेंस, दे रियली स्ट्रगल, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल टू पार्टनर विद देम. So I think with that context setting, I will also tell you the amount of money that these startups have raised till now. It's mind-boggling. हम कितना भी सोच ले, अगर हम एक ट्रेडिशनल कंपनीज को लेंगे तो काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ मनी दे रेज, उसको अगर मैं कंपेयर करूंगी स्टार्टअप से, उन्होंने क्या मनी रेज किया है इन द ईयर्स 2021, इट वाज 1.79 लाख crores. और आज के दिन इंडिया स्टैंड्स इन द 3rd place as the largest tech startups in the world. So all in all, the very importance of chartered accountant in the startup ecosystem cannot be ignored or overlooked, and we CAs need to upgrade and upskill ourselves to match up to these kind of founders, these kind of organizations. So I would be sharing my deck with you, and just a second, I can share my deck. So this is the number I was talking about. Or we all know, and we as Abhay was also mentioning, that even India is as a government, we see a lot of impetus is giving to make in India, be an entrepreneur, create employment opportunities. So सारा focus भी startup के ऊपर है, इसीलिए इतने tax benefits, इतना importance दिया जा रहा है अगर आप एक startup को incorporate करके इसको grow करते हो. So these are some of the facts about startup which I've already shared with you. Now, before even going into the startup, कैसे इंडिया में ये स्टार्टअप का वे स्टार्ट हुआ, मैं एक थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम इस पे जरूर स्पेंड करना चाहूंगी. आपको कॉन्टेक्स्ट सेटिंग हो जाएगा कि क्यों हमारे इंडिया में अचानक से ये बूम आ गया स्टार्टअप्स का. ऐसा तो नहीं था कि लोग पहले बिजनेस करना नहीं चाहते थे, या अचानक से ऐसा बूम क्यों आ गया. तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके, तो हमारा जो फर्स्ट वेव ऑफ स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप का स्टार्ट हुआ था जब हमारा एक आईटी इंडस्ट्री बूम करने लगा था. जब हमने देखा फाउंडर्स लाइक नारायण मूर्ति या पटनी कंप्यूटर, जब ऐसे ऐसे कंपनीज आने लगे, तो इंडिया एक ग्लोबल मैप पे अपने आप को प्रूव करने लग गया, और इंडिया बिकेम अ वेरी बिग आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, स्पेशली फ्रॉम आईटी पर्सपेक्टिव. तो जब the world got to know that okay, we have the required knowledge, we have the required capability to support them,
सो वहां से ही फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ. नाउ इफ आई गो टू द सेकंड वेव, उसके बाद तो वो हमारा एक आईटी का वेव था, जब हमने कंपनीज को देखना स्टार्ट किया, आईटी स्पेस में बहुत बढ़ने लग गया. सेकंड वेव हमने देखा स्टार्टअप इंडस्ट्री में, विच वाज मोर अबाउट कंज्यूमरिज्म. अगर मैं कुछ स्टार्टअप्स की बात करूं जो कंज्यूमरिज्म के बारे में, कैसे हमारा अचानक से हम इतना कंज्यूमर हो, कंज्यूमरिज्म मतलब कि कैसे हमने बहुत स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया क्लोथिंग पे, शूज पे, मूवीज पे, जैसे आईटी इंडस्ट्री बूम हुआ तो जो द अमाउंट ऑफ मनी दैट पीपल स्टार्टेड अर्निंग बिकेम वेरी लेस एंड लेस. एक आईटी में आप 12th पास से लेकर ग्रेजुएट तक भी एक 20 से 25,000 मनी अर्न करने लग गया. सो द पावर ऑफ स्पेंडिंग वैसे इंक्रीज हुआ और वहीं से कंज्यूमरिज्म स्टार्ट हो गया. उनका मेंटालिटी सेव करने का नहीं होता, उनका मेंटालिटी दे डोंट वांट टू सपोर्ट the family. The mentality is to enjoy the money. The mentality is to enjoy the fun around, and that's where अगर आप देखोगे तो वेब लाइक फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, ये सब हमारा कंज्यूमरिज्म का के स्टार्टअप्स है, which spoils you saying that आपको उठने की भी जरूरत नहीं है, आप एक ऐप पे जाओ और आपको सारा काम आपके हो जाएगा. बहुत स्टार्टअप उस कंज्यूमरिज्म मेंटालिटी को टैप करते हुए. थर्ड आया हमारा, अब जब ये कंपनीज ओला, जोमेटो, स्विगी, जब वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स आने लगे, वर्ल्ड के वीसीज आने लगे, उनको समझ में आने लगे कि इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, इंडियन स्टार्टअप्स हैव, इंडियन माइंडसेट और यंगस्टर्स हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल. एंड वहां पे हमने अपने स्टार्टअप को भी अपग्रेड किया. हमने बोला कि हम एक सिर्फ एग्रीगेटर मॉडल या एक हम आईटी मॉडल पे ऑपरेट नहीं करना चाहेंगे. We would like to upgrade ourselves, and we started building products around deep tech, AI और artificial intelligence. हम ये सब बातें करने लगे. और आज के दिन में, just for your information, in India we have at least more than 500 AI based startups which are completely working with deep tech. तो पूरे वर्ल्ड को समझ में आने लग गया कि हम जो बात कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, that has lot of potential, and that's why suddenly there's so much of phenomenal growth in our startup industry. इंडियन गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ी रेवेन्यू जनरेटिंग फ्रेटर्निटी है और ये लोग पीसफुली नहीं बैठते हैं. ये ऐसे नहीं है कि हमारा बिजनेस 10 साल या 15 साल में ग्रो होगा. दे आर फास्ट ग्रोइंग एंटिटीज. वो अगर 4 साल, 5 साल, 6 साल में ग्रो नहीं कर पाते हैं तो वो एग्जिट लेके वो दूसरा कुछ प्रोडक्ट पे वर्क करने लग जाते हैं. So to keep up the pace, of course, our government and the other allied institutes also had to keep pace with them. And इसीलिए हमने अचानक से बहुत स्टार्टअप इंडस्ट्री में बूम देखा. So with this context, I will come कि एक आपको इकोसिस्टम we need to understand how does the entire startup ecosystem work and how do we partner in each of these phases of a startup. So कोई भी स्टार्टअप, द वेरी फैक्ट कि उसी के कोई भी दो इंटेलिजेंट बंदे बैठते हैं और उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है इंडस्ट्री में या कोई प्रॉब्लम है जो कि कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, वो एक अपना माइंडसेट लेके आते हैं, अपना टेक लेके आते हैं, वो आइडिएट करते हैं और वो एक प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च करने का सोचते हैं. सो दैट इज कॉल्ड आइडिएशन स्टेज. जिस समय वो ये सोच रहे होते हैं कि मुझे एक प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाना है, फॉर वेरी सिंपल रीजन, लेट मी जस्ट टेक एन एग्जांपल कि जब I don't want to take, okay, let me just take an example. ओला, उबर हमने सबने देखा है. तो ओला ने देखा कि उबर ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अक्रॉस ग्लोब. उसने यूएस में लॉन्च किया. उसने बोला कि चलो पीपल आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कैब्स. उसी चीज को ओला ने इंडिया में रेप्लिकेट किया कि इंडिया में भी बहुत प्रॉब्लम है, आज हमें ऑटो लेना है, रिक्शा लेना है, कैब लेना है, सबके पास कार्स नहीं है, तो हमें क्या हम इस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं. तो वो लोग ने इस चीज को इंडियन कंज्यूमर के माइंडसेट से पढ़ के उसको स्टडी किया और उन्होंने सोचा कि यार देयर इज अ मार्केट एंड लेट अस लॉन्च ओला ऐप. सो एक आइडिएशन स्टेज होता है. आइडिएशन स्टेज के बाद जब हम सेकंड स्टेज आता है उसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट. तो इसमें ये क्या करते हैं, ये अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करते हैं, नॉट इन अ फुल फ्लेजेड वे. ये बेसिकली अपने आप क्लोज्ड पीपल को या फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को बोलते हैं आप यूज करके बताओ कि आपको क्या लगता है ये प्रोडक्ट काम करेगा. सो अगर मैं इसका एक सिमिलैरिटी ड्रॉ करूं, अगर मुझे एक बर्गर लॉन्च करना है
तो मैं, मेरा बर्गर का मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होगा, 2 बन्स होंगे, उसके बीच में मैं एक पैटीज डाल के आई विल जस्ट लॉन्च इट। उसके ऊपर मैं ना मैं लेट्यूस डाल रही हूँ, ना मैं सॉस डाल रही हूँ, मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की मेरा बेसिक प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। अगर वो खा के लोग बोलते हैं या ये बर्गर अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, फास्ट फूड है एंड मैं उसको वापस खरीदना चाहूंगा, तो तब मुझे अपना एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट का एक मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, अगर कुछ क्लोज लोगों को यूजफुल लग रहा है तो शायद ये आगे भी यूजफुल आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन ने जब स्टार्ट किया था, इट वॉज ओनली थ्रू इनवाइट। वो बोलते थे कि अगर उन्होंने सिर्फ क्लोज सर्विसेज में क्लोज लूप में स्टार्ट किया था, तो मिनिमम बेसिकली बहुत ही क्लोज स्टडी होता है ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, और यहाँ हम एज अ सीए कहाँ पार्टनर करके उनको वैल्यू ऐड कर सकते हैं, मैं उस पर डिस्कस करूंगी। जब एक एमवीपी होने के बाद आपका प्रोडक्ट, आपको कॉन्फिडेंस आता है, तब आप ट्रैक्शन करते हो। ट्रैक्शन क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को कमर्शियली लॉन्च करते हो। कमर्शियली लॉन्च करते हो, अब आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को छोड़ के यू गो अप बियॉन्ड योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड यू गो इन द मार्केट सेइंग दैट मैंने बर्गर लॉन्च किया है, आप खाओगे। नो, यू ट्राई टू फाइंड आउट योर कोलैबोरेटर्स, कहाँ आप इसको लॉन्च कर सकते हो। आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हो, आप अवेयरनेस क्रिएट करते हो, और आप देखते हो कि कितने पेड लोग आपके प्रोडक्ट को और आपके ऐप को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो ट्रैक्शन इज नथिंग और हाउ मच यू आर एबल टू ट्रैक और गेट पीपल। ये ट्रैक्शन स्टार्टअप वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बिकॉज जब आप किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो तो वो जरूर पूछता है कि आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रैक्शन क्या है, कितने कंज्यूमर्स आपने आपके ऐप पे रजिस्टर्ड है या आपके वेबसाइट पे रजिस्टर्ड है जो आपके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं या यूज करना चाहेंगे। सो ट्रैक्शन इज वन थिंग। उसके बाद जब ट्रैक्शन मिल जाता है, जब एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है स्टार्टअप का, तब आप उसको स्केल अप करते हो। स्केल अप इज अ फेज वेयर दे गो ऑल आउट इन द मार्केट, they get funding, they get huge funding, and then they in very common words, they burn cash, they try to create lot of branding, they try to create lot of marketing कि उनका सब्सक्राइबर बेस बढ़े। सो जनरली ये 4 फेजेस होते हैं। कोई भी आप स्टार्टअप के इकोसिस्टम में जाके देखोगे तो आपको ये चार फेज आपको जरूर मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपका अब कोई भी इस चारों फेजेस के अंदर आप जनरली एक स्टार्टअप का मेंटालिटी, मैंने जैसे आपको बताया था कि उनका ये मेंटालिटी रहता है कि मैं सारी चीजों को जल्दी से जल्दी करूं, बिकॉज उनका रहता है कि मुझे वो स्केलिंग अप तक पहुंचना है, और एमवीपी और ट्रैक्शन मेरे लिए वो ब्रिज है पहुंचने के लिए स्केलिंग अप। तो आप देखोगे कि आज पहले स्टार्टअप का एक बोलते थे चलो साल 2 साल आप एमवीपी लॉन्च करो, फिर ट्रैक्शन करो, स्केलिंग अप करो। अब जैसे जैसे अवेयरनेस क्रिएट हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को और मोटिवेट हो रहे हैं स्टार्टअप में आने के लिए, ये साइकिल टू स्केलिंग अप रिड्यूस होता जा रहा है स्टेज। तो नाउ आई विल डिस्कस कि हर स्टेज पे हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं ऑन ग्राउंड लेवल, कैसे हम इन स्टार्टअप फाउंडर्स को इनेबल और एम्पावर कर सकते हैं। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग, and that's one of the most common things I have seen in Bangalore market, जब कोई बंदा आइडिएट करके कोई प्रोडक्ट और सर्विस पे काम करता है, उसको ये क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको वो सोचता है कि मैं एक पार्टनरशिप फॉर्म करके या एक मैं सोल प्रोप्राइटरशिप करके बिजनेस स्टार्ट कर देता हूँ या प्रोडक्ट और सर्विस को लॉन्च कर देता हूँ। पर अगर आप स्टार्टअप मेंटालिटी के साथ हो, अगर आपका विजन एक स्टार्टअप बनने का है, तो आपको आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाला चीज आपका काम नहीं आता है। आपको इधर तो एलएलपी होना, इधर यू नीड टू बी एन एलएलपी और यू नीड टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ना यहाँ पे उनको बहुत क्लैरिटी के साथ, वी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो वी रियली नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एलएलपी, what is private limited company, why they should go for LLP and not private limited company, and vice versa, that why they should go for private limited company and not for LLP. Now the very common thing that if you ask a startup कि आप how do you see yourself growing, आप कैसे grow करोगे, वो बोलेगा I will go to my इन्वेस्टर्स और मैं फंडिंग रेज करूंगा। अगर उसका माइंडसेट शुरू से यही है कि मुझे फंड रेज करके ग्रो करना है, तो हमेशा उसको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनाओ, बिकॉज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज द ओनली वे वेयर यू इशू शेयर्स, एंड ये इन्वेस्टर्स जब आते हैं वो स्टेक लेते हैं कंपनी के अंदर थ्रू शेयर्स, और बहुत ईज हो जाता है मनी को इन्फ्यूज करना इनटू द कंपनी।
दूसरा उनका प्रॉब्लम रहता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप दे आर स्केयर्ड ऑफ कंप्लायंसेस की जैसे ही मैंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, मुझे आई कम अंडर कंपनीज एक्ट और मुझे बहुत कंप्लायंसेस के क्वेटर करना पड़ेगा और बहुत उनको ये भी लगता है कि कभी-कभी कि आई हैव जस्ट स्टार्टेड एंड आई हैव टू स्पेंड मनी ऑन कंप्लायंसेस, इज इट रियली नेसेसरी? So then of course we have to go and explain them that ki it is definitely अगर आप एक LLP incorporate कर रहे हो तो आपका जो number of compliances will always be less vis-a-vis private limited company. But if you are planning to go in the market and raise funds from external investors, तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और आपके कंप्लायंसेस अप टू डेट है, आप जो इन्वेस्टर रहता है उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल आपकी एंटिटी में, आपके स्टार्टअप में बढ़ जाता है। उनको पता है कि आप कोई भी इंडिया में आरओसी कंप्लायंसेस इजी नहीं है, अगर आप सारे कंप्लायंसेस को केटर कर रहे हो तो उनका भी कॉन्फिडेंस आप में बढ़ता है। सो वी ऑलवेज से डोंट लुक एट द मनी, डोंट लुक एट द small hassle that I have to do so many compliances. These compliances will only bring in more confidence in investors in investing in a company. So I think at ideation stage और ये बहुत स्टार्टअप से जैसे there are a lot of conferences and meetings that happen where I go as a speaker or as a participant to attend those conferences. When I interact with these startups, they are always confused about it. और मुझे लगता है हमारा हैंड होल्डिंग स्टार्टअप को वहीं से स्टार्ट हो जाता है। So I think that is the very first thing that we need to explain them in terms of क्या एंटिटी आप इनकॉर्पोरेट करते हो और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है, क्या क्या एक बेसिक हाइजीन चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सिंगल फाउंडर हो तो आपको एक को फाउंडर फाइंड करना पड़ता है, या अगर आप सिंगल फाउंडर हो तो आपको एक को डायरेक्टर फाउंड करना पड़ेगा टू इनकॉर्पोरेट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो वो हम ये चीजें हम इस स्टेज पे स्टार्ट कर देते हैं। सो दैट इज वन अपॉर्चुनिटी दैट आई फील दैट वी कैन पार्टनर विद द स्टार्टअप्स। Now the second thing, as I said, MVP, अब जब उसने अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज बना दिया, वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को केटर कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक प्रॉपर एज अ एंटिटी जाके वो सेल कर रहा है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भी उनको यही सजेस्ट करते हैं। वी ऑलवेज सजेस्ट दिस स्टार्टअप दैट डोंट गो without any name and brand in the market. Even if you're doing MVP, you should always have a company name and your brand in place, that tomorrow if somebody likes that idea, they may not be able to copy it if you are properly branded, trademark, and your company is incorporated. So it's very important before MVP they should register their company. Now it's very important now again the moment you register the company, so initially तो हम उनको सिर्फ registration करवा देते हैं। जब वो commercial के MVP के फेज में आते हैं तब उनको बोलते हैं कि अगर आप अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से चार्जिंग देम मनी, देन वी हैव टू डू अ डीप स्टडी इनटू वेदर व्हाट आर द GST लॉज applicable for you, do you really need to take GST registration, what are the kind of revenues that you are looking for. So we have there also they don't understand GST, so they feel it's a very complicated thing and they're scared to come under the radar. But we say that GST will only empower and enable you. It is not to make you scared. And if you are in India, GST is part and parcel if you're a growing company. So you cannot say that I don't want to be GST. They say कि मुझे करना ही नहीं GST registration, which is not possible. So हम वहाँ उसको कंसल्ट करके उनको एजुकेट करते हैं कि क्यों GST बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इफ यू आर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कौन सी GST की कैटेगरी में फॉल करेंगे. Then we also are now there's lot of benefits that is given to not only to startup to any organization under MSME, and it's a very simple process to get them registered. So we always say startups, the moment you have incorporated, please register yourself under MSME. So वहाँ पे उनको educate करते हैं कि why it is important to get yourself registered at MSME और क्या क्या benefits government आपको देती है अगर आप MSME registered हो. So वहाँ उनको बहुत क्लैरिटी आती है. अगर वो स्टार्टअप बोल रहे हैं कि मैं तो MVP के पास सीधा आई वांट टू ऑफर माय प्रोडक्ट टू ग्लोबल ऑडियंस, मैं ग्लोबल कंज्यूमर्स चाहता हूँ मेरे प्रोडक्ट को, तो हम उनको IIC के बारे में ये सब चीजों के बारे में उनको बताते हैं. So now these are just taking few examples. आप अगर देखोगे तो कोई भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अगर कोई फूड इंडस्ट्री में, तो क्यों उनको FSSAI लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट इनटू, हम उनको इनेबल और एजुकेट करते हैं ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन.
ना बहुत इंपॉर्टेंट है, MVP लेवल पे हम उनको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बारे में बताते हैं। नाउ व्हाट इज स्टार्टअप इंडिया स्कीम? ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनेबल और स्टार्ट किया है, और इतना ब्यूटीफुल है उसका वेबसाइट और उसके सारे प्रोसेसेस, सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। सो यू नो, इट डजंट नीड people like you or me. I in fact tell my startups also that, you know, up, just go and visit the website. You will know what's happening in you know, in India, in the startup space. It really educates you, it really gives you so much of inside information. So it is like a book, and every day when you go there, you know, every week when you go there, there's something new that is always put on the website. तो बहुत ही डायनेमिक वेबसाइट है और बहुत ही अच्छे से लोगों ने हर चीज को एक्सप्लेन किया है। Now what is startup India scheme? तो बेसिकली उनका कुछ क्राइटेरिया, आप हर वेंचर को, हर कंपनी को आप स्टार्टअप इंडिया का टैग नहीं दे सकते। आप भले ही बोल सकते हो कि मैं एक स्टार्टअप हूँ, मैंने मेरी कंपनी क्विंटन कंसल्टिंग, मैं भले ही बोल सकती हूँ कि मैं स्टार्टअप हूँ, पर लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ क्राइटेरियाज होते हैं आपको एक स्टार्टअप का टैग देने के लिए। आई विल जस्ट टेक सम 1 or 2 पॉइंट्स। जैसे वो बोलते हैं कि आप अगर स्टार्टअप की कैटेगरी में तभी फॉल करोगे अगर आपका प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बहुत इनोवेटिव है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि कोई भी चीज को, बहुत ही कोई ट्रेडिशनल बिजनेस को, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज को कॉपी कर रहे हो एंड यू कैन गेट अ टैग ऑफ startup. No, this way your product should be innovative, it should be creative, it should generate lot of employment, it should have a capability of you know, scaling up at exorbitant you know, at an exponential rate. तो उनके क्राइटेरिया रहते हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट क्राइटेरिया रहते हैं। तो द मोमेंट यू अप्लाई अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम, यू गो, दे गिव यू अ सर्टिफिकेट कॉल्ड डिप, जिससे आपको एक रिकग्निशन मिल जाता है कि यू नो, आई एम स्टार्टअप इंडिया रजिस्टर्ड। वो सर्टिफिकेट लेके आपको बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर आप अंडर लेबर लॉ आ रहे हो तो आपके यहाँ पर इंक्वायरी नहीं आती है। एंड यू नो, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बेनिफिट्स दैट यू गेट व्हेन यू रजिस्टर्ड अंडर, व्हेन यू गेट द डिप सर्टिफिकेट। नाउ ये सर्टिफिकेट मिलना आई थिंक रिलेटिवली इजी रहता है। आई थिंक एज ऑफ now, as I said, इंडिया में अराउंड 60,000 स्टार्टअप को ये डिप सर्टिफिकेट है, आप जाके वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड दिस ऑल्सो, द मोमेंट यू आर रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रजिस्टर्ड स्टार्टअप, you can go and claim yourself anywhere globally that you are a startup, you know, and because you are on the website, जो आपके डिटेल्स रहते हैं वेबसाइट पे, आपके वो सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट कहीं भी आप डाल सकते हो। आपको अगर आप कोई टेंडर भर रहे हो गवर्नमेंट का, वहां भी आपको बेनिफिट मिलते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स व्हेन यू बिकम अ स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। नाउ द बेनिफिट्स, तो ये तो एक बहुत इनिशियल एक फर्स्ट लेवल ऑफ बेनिफिट है। Now, as I said, the startup का सबसे important mindset यही रहता है कि मुझे to grow the business, I need to raise funds. Now to raise the funds, they have to go to external investors. उनको funds raise करने के लिए किसी angel investor के पास जाना पड़ता है, किसी VC के पास जाना पड़ता है. There are different kind of investors. So आप किससे पैसे और किस फेज पे पैसे ले रहे हो, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को भी कैटेगराइज कर दिया जाता है। सो उनका जो माइंडसेट ये रहता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेप आगे जाके और उनको 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। एक बेनिफिट मिलता है उनको एंजल टैक्स का। नाउ आई विल जस्ट एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली व्हाट इज दिस एंजल टैक्स। आज कोई भी कंपनी जब शेयर इशू करती है, अगर उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज है ना, अगर वो जब फंड रेज करती है, तो वो अपने फंड जब इन्वेस्टर्स को लेके आती है अपनी कंपनी में फंड्स के लिए, तो वो फेस वैल्यू पे रेज नहीं करती है। द कंपनी ऑलवेज give equity for a premium. अब for understanding से, अगर 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, अगर मैंने उसको 2000 रुपीज पे इशू किया है, तो 1990 रुपीज is my premium. Now this premium initially government used to say कि आपका 1990 रुपीज आपका प्रीमियम है और आपको हम इसको टैक्स करेंगे as income from other sources. Now as startup industry started gaining momentum, government startup started saying, agar if you start charging me on my premium, I've taken that money for my growth of the business, if you start charging me there, I lose money.
the entire the focus of growing the business with the investors money, I have to give one chunk to you guys. So this is not fair. And of course government also started understanding startups, and they realized that yeah, they take money. Jab aap koi bhi money raise karte ho, you always put how much money you need and how you want to use the money. So the government said, okay, I'm not going to you don't have to pay angel tax. First, of course, you are registered in the startup, and then you give a self declaration saying that the money that I have taken, if suppose I have got 1 crore worth of funds, I'm going to use the money only for the reasons, only for the cases for which I need to grow my business. The money would be used only for the growth of business and not for the whims and fancies or the luxuries of promoters or the founders. तो अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे देते हो तो आपको इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ता है. Of course, there is one more thing that you have to get your company company को आपको वैल्यूएशन करानी रहती है. So एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपको इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ता अगर सेल्फ डिक्लेरेशन दे देते हो. इससे बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत बात है कि जब when any startup starts at initial stages, they really struggle a lot. It's not easy. जब हम big funds देखते हैं उनको we see that somebody got funding but $2 million or $5 million, and we say कि wow, their life is so easy. No, but to come to that stage, they really work hard. उनका for them to make that product work और बहुत उनके लिए मैटर करता है. And we only hear the success stories about the startup which have got the funding. There are so many startups which doesn't even reach that level. So it's very important कि उनको initial years में बहुत hand holding की जरूरत पड़ती है. So what government startup India scheme के अंदर एक बहुत ही beautiful benefit available है, which is under section 80 AIC of income tax, जहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर आपको हम 3 years का इनकम टैक्स बेनिफिट देंगे जहां आपको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. नाउ ऐसा नहीं है कि जैसे द मोमेंट यू गॉट अ डिप सर्टिफिकेट और दैट यू आर अ स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, यू विल गेट दैट बेनिफिट. There's again a different processing and different criteria to give you that status. So what they say under that ATIC, any startup which is registered after 2016 and up to 31st March 2022, they will have a tax holiday on their income tax for 3 years out of the 10 years. So अगर 21 में मैं declare करती हूँ and I take that certificate of ATIC, in the next 10 years, in any 3 consecutive years, I can take a tax benefit of not paying any income tax on my income. Now, गवर्नमेंट knows that startup में पैसे डालने के लिए पैसे बहुत जगह से आते हैं. Let's not even get into that. So they want to be very careful कि वो किसको वो tax benefit मिल रहा है, and they want that only genuine and good startups with all the protocols followed should get that should take the advantage of ATIC. तो ATIC लेने के लिए of course आपको it's not easy. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत जरूरत पड़ती है. वहां पे आपको उनके फाइनेंशियल्स पे वर्क करना पड़ता है. उनको एक 2 मिनट का वीडियो अपलोड करना पड़ता है फाउंडर को, ये बताने के लिए कि कैसे उनका स्टार्टअप बहुत ही इनोवेटिव है, बहुत क्रिएटिव है, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, कैसे उनमें स्केल अप होने की बहुत पॉसिबिलिटी है. एंड it's and then after that they also need to put their pitch deck. उनका pitch deck का एक बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिसमें they like to understand the business model and the startup in detail, like what is the problem, what is the solution, what is the market that they're catering to, what are the projections, who are the people involved in the startup, how much money they have raised or planning to raise, or how they're going to use the funds. तो बहुत ही transparent process है. But then out of this, if I just take a ballpark number of 60,000 startup which are registered on Startup India scheme, जिनको डिप सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसमें से सिर्फ I think 59 or 60 startups have taken the benefit of ATIC. A lot of startups go for it and they get rejected for various reasons. Now this is again a very contradictory thing that government of India have created the Startup India scheme, जिसपे first level पे आप खुद ही एक startup को status दे रहे हो कि आप you follow all these criteria, और second level पे when they go for ATIC आप उनको reject कर दे रहे हो. So obviously थोड़ा सा paradox है, थोड़ा सा
when I talk to startups and they say कि government of India is biting his own finger, आप देकर status खुद ही उससे ले ले हो, but what we have, and we have to work with whatever we have got. So I always tell them that don't lose heart. You can always we can again go back and apply for it again and try to get APIC. So ये एक बहुत ही बड़ा benefit है जो कि as a chartered accountant when we are consulting with startups or anybody who wants to launch a startup, we should definitely tell them to become part of Startup India. यहाँ पे आप उनको registration से लेके आप उनको angel tax का benefit से लेके आप उनको ATIC तक सब पूरे plethora of things में आप उनको handle करके help कर सकते हो और value add कर सकते हो. So I think these are the first two stages. इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आता है जब मैंने बताया MVP पे they are just taking their product or services to the people they know, their friends and families. The next stage is ट्रैक्शन, जहाँ पे ये बिल्कुल ऑल आउट मार्केट में चले जाते हैं एंड दे वांट मोर पीपल टू subscribe for their products. They want paid consumers, वो free वाली चीज को हटाना चाहते हैं. They want to show to their investors कि उनके product और services में बहुत value है और वो बहुत इस startup को बहुत potential है grow करने के लिए. यहाँ पे उनको बहुत help चाहिए होता है. The very first thing, even before they go to the market, to their investors, is a pitch deck. तो मैंने आपको बताया pitch deck. आपको what is pitch deck? अगर आप बहुत ही लेमन टर्म में समझना चाहेंगे, हम वी ऑल आर प्रोफेशनल्स. पिच डेक इज नथिंग बट एक आपके पूरे बिजनेस के बारे में, आपके स्टार्टअप के बारे में एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलता है इन्वेस्टर्स को और या एनी अदर एजेंसीज और इंस्टीट्यूट्स हु वांट्स टू नो अबाउट द बिजनेस. इसमें बहुत ही सिंपल और क्रिस्प तरीके से स्टार्टअप को अपने क्या प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहा है, क्या सोल्यूशन वो लेकर आ रहा है, उसका मार्केट साइज क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या है, इसका बहुत ही स्टैंडर्ड 10 to 12 स्लाइड्स का एक पिच डेक होता है. यहाँ पे as a chartered accountant we can add lot of value to the startups in terms of doing a competitor analysis ki aapka business vis-a-vis other competitor ka business mein, in terms of how you are more profitable or how will you compare yourself with the profitability of other competitors. आपका हम यहाँ पर projections की भी बात करते हैं. pitch deck का एक बहुत important part है financial projections कि आप क्या project कर रहे हो, आपकी business, आपकी company कैसे grow करेगी, आप क्या assumptions ले रहे हो. तो pitch deck में they really need lot of hand holding and यहाँ पे बहुत चीजें उनको जो समझ में नहीं आती है वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आके उनको हेल्प करें. Now, इसके बाद वैल्यूएशन. Now, वैल्यूएशन आई एम श्योर ऐसा हो नहीं सकता है कि if you're part of India and if you're part of social media, अगर आप WhatsApp पे हो तो you are not hearing some mind-boggling numbers. The valuation that we see. अभी recently we saw certain IPOs also. So valuation एक ऐसी चीज होती है कि आप एक इन्वेस्टर्स के एक फाउंडर के नजर से जो कंपनी को क्रिएट कर रहा है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बना रहा है, और इन्वेस्टर आप क्या पोटेंशियल देख रहे हो उस कंपनी का ग्रो करने में. और पूरा वैल्यूएशन का नंबर्स आर जस्ट बेस्ड ऑन assumptions. I don't have to explain it to you. All are chartered accountants. We know the entire thesis, the entire valuation number is only how well you can substantiate your projections, what assumptions you are taking, what multiple. एक हम बहुत ही लेमन टर्म में बोलते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 1 crore है, आपका वैल्यूएशन आप 5x लेके 5 शेयर दिखा सकते हो. There are different ways how you do valuation. DCF बहुत ही कॉमन मॉडल है वैल्यूएशन करने के लिए. But then why do they need us? हम उनको एक एक्सेल शीट बना के एक वैल्यूएशन देके उनको बोल सकते हैं कि ये आपका वैल्यूएशन है, आप जाओ. But as I said, most of the founders, they are techies, they are they are engineers, and they are not very comfortable talking about the numbers. So we really need to empower and educate them that why your valuation makes sense. हमने अगर कोई valuation report बनाई है, as a certified valuer, how do we substantiate that number? We explain them that what are the assumptions. We give them the industry perspective. How is industry growing? How will your company grow? हमने कौन सा method use किया है, हमने क्यों ये method use किया है. We give them all these
these numbers, and valuation plays a major part, because when they go out in the market, when they are asking for funds, the entire funding is based on how much they have valued their company on. फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैंने एक कंपनी स्टार्ट किया है, and I'm going to take a live example now. The company is in the space of exotic food. Now अभी कंपनी का ऑपरेशन जस्ट लॉन्च हुआ है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड द ऑपरेशन, एंड ऑलरेडी वी हैव गॉट एन इन्वेस्टर एट एंजल लेवल, जो कि उससे 10% स्टेक के लिए 20 लाख फॉर एग्जांपल इन्वेस्ट किया है. सो इवन बिफोर द कंपनी इज इन द मार्केट फुल फ्लेजेड, MVP लेवल पे उस कंपनी का वैल्यूएशन हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में बोलते हैं 2 CR हो गया है, बिकॉज 10% स्टेक के लिए दैट पर्सन हैव रेज्ड 20 लाख. सो बहुत मैटर करता है वैल्यूएशन, बिकॉज व्हेन वी गो फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग, जब वो अपनी कंपनी में उसे 10 करोड़ या 50 करोड़ की जरूरत होगी, व्हेन ही विल नीड दैट काइंड ऑफ मनी, द वेरी फर्स्ट बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो वैल्यूएशन, जब आप एक्सटर्नल मनी रेज कर रहे हो तो आपको कंप्लायंस के पर्सपेक्टिव से भी, बोथ फ्रॉम ROC कंप्लायंस एज फ्रॉम IT कंप्लायंस, आपको वैल्यूएशन कराना कंपलसरी हो जाता है जब आप एक्सटर्नल मनी लेकर आ रहे हो. ये चीजें वो नहीं समझते हैं. उनको लगता है कि अगर मेरे पास इन्वेस्टर है, वो पैसे डालने को राजी है, व्हाई आई नीड टू स्पेंड ऑन वैल्यूएशन, व्हाई आई नीड टू गेट इनटू ऑल these things. We really need to educate them that why, if you are growing, if you want to grow, and if you are operating in India, you have to follow law of land, and why valuation is so important, especially when you're raising funds. So यहाँ पे उनको we can partner with them. We play a very very important role in upskilling them the importance of valuation and how do we go about doing valuation. Now इसके बाद the story doesn't end here. Sometimes they even expect कि अगर आपने valuation report create करी है, they ask us also, that why don't you come to, when I go for an investors meeting, why don't you come and help me if they don't understand certain assumptions or they are not able to understand the numbers, why don't you come. So यहाँ पे as I said, आप जब किसी स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हो, आपका मेंटालिटी बहुत एज अ प्रोफेशनल बहुत मैटर करता है. You have to partner with them, you have to work with them like they're partners. बहुत हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है, and so you cannot say that I have prepared my valuation, I have handled pitch deck, I will not go and meet your investors. No, generally we go one step ahead and help them to make, when they're pitching it to investors, और हमने जो valuation report बनाई है, अगर उसमें कुछ भी clarity चाहिए होता है, तो we also go and help them explain it to the investors. Now this is जब तक हम इन्वेस्टर्स कन्विंस नहीं हो जाते हैं, एंड दिस दे डोंट गो ओनली, ऐसा नहीं है कि दे गो टू वन इन्वेस्टर और उस एक इन्वेस्टर ने उसको दे से या वी आर गुड टू गो, दे गो टू मल्टीपल इन्वेस्टर्स. उनको दे हैव टू डू प्रेजेंटेशन इन मल्टीपल फोरम्स. एंड वेरी रिसेंटली, अगर आपने इफ यू गाइस फॉलो स्टार्टअप शार्क इंडिया, उसने पूरे प्रोसेस ऑफ पिचिंग को उन्होंने एक गेम शो की तरह बना के लाइव पिचिंग में दिखा दिया कि कैसे वो प्रेजेंट करते हैं इन्वेस्टर्स को, और कैसे इन्वेस्टर्स उनको लेफ्ट राइट एंड सेंटर ग्रिल करते हैं टू फाइंड आउट कि व्हाई दे शुड इन्वेस्ट, राइट. और बहुत इजी नहीं होता है उनको मनी रेज करना, तो बहुत फोरम्स पे जाते हैं और उनको बहुत जगह अपने वैल्यू को दिखाना पड़ता है. और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया कि आज मैंने वैल्यूएशन कर लिया कि मेरी माय स्टार्टअप इज वर्थ 2 crore एंड इफ आई वांट टू रेज 20 lakhs आई जस्ट गिव यू 10 crore. वहां पे बहुत वो नेगोशिएट करते हैं कि हम 20 लाख देने को रेडी हैं, बट हमें 20% स्टेक चाहिए, हमें 15% स्टेक चाहिए. So as a founder of a startup, you go through a lot of grill and a lot of these churning, and that's why when we partner with them as their chartered accountant, as their financial advisor, as their consultant, we really need to support them in each stage and really empower them ki, you have to whatever it is, we are there for you, whatever help you need. Now जब उनको पैसा मिल जाता है, when they actually finally get an investor to invest into their business, बहुत ही important होता है कि क्या terms and conditions पे आपने money raise किया है. Now इनिशियली हम एक सिंपल डॉक्यूमेंट में इस चीज को करते हैं कि ओके, आप अपना स्टेक लोगे, आपके ये टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, आपके ये
अब आपकी तरफ से हम ये एक्सपेक्टेशन कर सकते, तो देयर इज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन सेटिंग बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड द फाउंडर्स। नाउ उसको उस चीज को ड्राफ्ट करने के लिए हम एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनाते हैं। नाउ एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, पहले शेयर होल्डर एग्रीमेंट लॉयर्स, पहले क्या आज भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट लॉयर्स बनाते हैं, लीगल एडवाइस हम आज भी लेते हैं जब कोई भी एग्रीमेंट ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट बना सकता है। एंड द ब्यूटी ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट कि इसको आप बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो, क्योंकि कभी कभी इन्वेस्टर्स, समटाइम इन्वेस्टर्स कम अप विद सम यूनिक एक्सपेक्टेशन, बहुत ही क्रिएटिव टू कीप एन टैब ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, ऑन द वर्किंग ऑफ द फाउंडर्स। तो जब आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हो, एज अ पार्टनर, you also understand ki how the way people used to do business have completely changed, how creative the investors have become, how creative the startups have become। और यहाँ पे बहुत ही आप बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करते हो, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, और ये आपका वो डॉक्यूमेंट होता है जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप मूव फॉरवर्ड करते हो। द इन्वेस्टर्स पुट इन मनी एंड द फाउंडर्स स्टार्ट ग्रोइंग देयर प्रोडक्ट और सर्विसेज। आप एक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो एक स्टार्टअप इज नथिंग मोर देन एन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। तो उनके लिए आप एक एसेट क्लास हो, एक स्टार्टअप एक एसेट क्लास है, और इसीलिए जब वो पैसे डालते हैं तो वो बहुत इंश्योर करना चाहते हैं कि हमारा जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट बहुत वाटर टाइट होना चाहिए, उसमें ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से मेरा हार्ड एंड मनी मिसयूज हो जाए, या मेरा हार्ड ऑफ मनी का के लिए जो यूसेज के लिए उस एक फाउंडर ने लिया था वो उसके लिए यूज ही कर रहा हो। और आज in today's world it has become all the more important because there were certain cases जहाँ पे starters have taken money for a particular purpose and they use it for some other purpose। So now investors have, because we are in this global what do you say information world, जहाँ पे कुछ भी छुपता नहीं है, everybody is aware about everything and investors have become very very intelligent। so shareholder agreement बहुत ही critical, बहुत ही important हो जाता है। okay, yes, Isha, all good, right? Yes, yes. Yes, Nisha. Yeah. All good. Yeah, great। That's why एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा शेयर होल्डर एग्रीमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल, हम इसमें रोल प्ले कर सकते हैं समझने में भी और समझाने में भी। और all these services, all these, as I said, these are new roles that we are playing, these are the new opportunities that we are creating। हम कोई भी चीज we don't do it for free, तो आप इसके लिए फीस भी चार्ज कर सकते हो, और फीस कंप्लीटली आप उस बेसिस पे चार्ज कर सकते हो कि आप कितना वैल्यू ऐड कर रहे हो शेयर होल्डर एग्रीमेंट में, उस वैल्यूएशन में, उस प्रेजेंटेशन में। So this also opens a lot of avenues for us as a chartered accountant कि apart from हमारा जो regular accounting compliances का work होता है, उसके beyond जाके हम यहाँ पर बहुत ही creatively, and this is not something very repetitive in nature। हम आज आप किसी भी CA से बात करोगे तो after a point वो बोलते हैं यार वही का सेम काम है, वही मंडेन काम है, वही टैली में एंट्री करो, वही MIS बनाओ, वही compliances करो। बट यहाँ पे जब आप पिच डेक बनाते हो, जब आप शेयर होल्डर एग्रीमेंट क्रिएट करते हो, ये बहुत ही क्रिएटिव काम होता है, और इसमें हर डील जो होता है, हर एग्रीमेंट जो क्रिएट कर कुछ ना कुछ नया आपको जरूर देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, नॉट ओनली फ्रॉम जनरेटिंग रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से, बट ऑल्सो फ्रॉम अपग्रेडिंग आवरसेल्फ फ्रॉम वेयर वी आर ऑपरेटिंग नाउ। जब हम तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ऐसा पिच डेक, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर एग्रीमेंट एक ऐसा इंडस्ट्री पूरा अपने आप में एक इंडस्ट्री बन चुका है। You can just be specialized in pitch deck, you can just be specialized in valuation के लिए of course अब तो आपको पता है कि we have to be certified valuer। आप शेयर होल्डर एग्रीमेंट के एक्सपर्ट बन सकते हो, तो आप अपना एक निश क्रिएट कर सकते हो in any of these things। और जब आप अपना निश क्रिएट कर सकते हैं तो as a chartered accountant we are into service industry, and how much value we place to our services is completely dependent on us। इसके बाद हम एक स्टेप आगे जाते हैं, और हम ये एक इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस के लिए, एक स्टार्टअप के कॉन्फिडेंस के लिए हम उसके ग्रोथ को भी ट्रैक करते हैं। जब कोई एक स्टार्टअप बोलता है कि मैं आफ्टर द मनी इज फ्यूज्ड इन माय स्टार्टअप, या आफ्टर आई गेट फंडिंग, आई लुक एट
an exponential growth of 100%, 200%, 5%, तो आप जब ये नंबर सुनते हो तो आपको बहुत रियल नहीं लगता है. As a chartered accountant, when I am preparing, working with the numbers, I say, how is it possible? It just, we have not seen those numbers. And then what you start doing, आपके जो भी clients होते हैं या जो startups में आप interested होते हो, आप उनके actually growth को track करना start कर देते हो. तो इससे एक आप of course आपका self knowledge तो enhance होता ही होता है. उससे क्या होता है, आप जब investor से बात करने जाते हो, maybe the next investor or the existing investor of your client, आप उनको जब ये growth दिखाते हो, आप जब उनको industry की बात करते हो, it really gives the investors and the startups more confidence that my partners are right. I am not only worried about the investor को ऐसा लगता है कि सिर्फ वही worried नहीं है उसकी growth के लिए, या सिर्फ startup को ऐसा लगता है कि वही सिर्फ track नहीं कर रहा है. We have partners like us who are also doing that job for them. और इसमें क्या होता है कि आपको भी समझ में आने लग जाता है कि कौन सी इंडस्ट्री है कि जहाँ पे यू कैन गेट इन मोर इन्वेस्टर्स. आपको ये अंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है कौन सी इंडस्ट्री है जहाँ पे आप ज्यादा स्टार्टअप्स को ग्रोथ देख सकते हो. इनफैक्ट देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने स्टार्टअप के इंडस्ट्री में भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अपना एक्सपर्टीज कर लिया है कि मैं सिर्फ AI रिलेटेड स्टार्टअप्स को ही कंसल्ट करूंगा. सो the point that I'm trying to drive is that out of all these things you can create a niche for yourself and you can just keep going. एक होता है ना, हम T structure जो follow करते हैं कि हम master jack of all trades, master of none. इसमें आप एक कोई particular T format में हम क्या करते हैं, सब चीजों के बारे में हमें पता था, पर एक particular इंडस्ट्री लेके हम उसी में अपनी एक्सपर्टीज को बना लेते हैं. सो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है एक स्टार्टअप के लिए. आप कुछ भी बात करते हो, आप किसी भी इन्वेस्टर से बात करते हो, कोई भी स्टार्टअप को कंसल्ट करते हो, उसका कॉन्फिडेंस लेवल दूसरे लेवल पे चला जाता है अगर उसको ये लगता है कि यू कम विद सो मच ऑफ नॉलेज बाय ट्रैकिंग दीज स्टार्टअप्स. देन of course because आपने स्टार्टअप को हैंडल किया राइट फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, आपने उसकी वैल्यूएशंस बनाई है, आपने उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज को समझा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लग जाता है कि उस स्टार्टअप का की ड्राइवर्स और कॉस्ट क्या है, क्या ऐसी चीजें अगर वो स्टार्टअप उस पर ध्यान रखे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकता है, और क्या ऐसी चीजों को ध्यान रखे जिससे वो अपने कॉस्ट को कम कर सकता है. तो बहुत स्टार्टअप्स स्टार्ट कर लेते हैं, दे गो 1 and 2 years and then they really struggle with the cash flow. वो हमेशा बोलते हैं कि we are always struggling with the cash flow. In fact, just for your numbers, 85% of the startups actually fail. जो fail startups है, उसका आप नंबर उठा के देखोगे तो 85% of them actually fail because of the poor cash flow management. उनको पता ही नहीं रहता है कैश फ्लो, उनके हिसाब से पैसा आया कहाँ जा रहा है, उनको वो टैब रखना नहीं आता है, उनको ये समझ में नहीं आता है कि कोई भी बिजनेस, कैसा भी बिजनेस हो, कैश होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप द बिजनेस रनिंग एंड चर्निंग. तो वहां पे हम उनको हैंडल करते हैं, उनको we give deep insights into what is the cash flow, how they should manage their cash flows, क्या उनके की ड्राइवर्स है, कैसे वो कॉस्ट को कंटेन कर सकते हैं. हम उनको ये भी कॉस्टिंग का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि क्यों, कैसे वो अपने फिक्स कॉस्ट या सम कॉस्ट को लिमिटेड रख सकते हैं, कैसे वो वेरिएबल मॉडल पे ऑपरेट कर सकते हैं. तो हम ऐसी बहुत सारी स्मॉल थिंग्स होती है जिसपे उनको कंसल्ट करते हैं, जो वो एज अ फाउंडर नहीं देख पाते हैं, और हम देख पाते हैं बिकॉज हम एवरी डे हम कोई ना कोई बिजनेसेस, हमें पता है कोई भी बिजनेस को रन करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू हैव ग्रेट प्रोडक्ट और सर्विसेज, बट देन यू रियली नीड टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस. अगर आपका फाइनेंस पे कंट्रोल नहीं है, आपके कैश फ्लो पे कंट्रोल नहीं है, तो वो बिजनेस बहुत ज्यादा दिन तक ग्रो नहीं करता है. एंड आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस टू ऑल माय चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड्स, वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट. सो एक ट्रैक्शन के फील्ड में अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही हाई लेवल पे मैंने ये 6 पॉइंट्स डाले हैं. अगर, और जैसा मैंने बोला कि अगर आप कोई भी चीज में जाओगे तो हर एक पॉइंट जो मैंने मेंशन किया उसके अंदर भी आप अपना शब्द निश क्या बोलते हैं, अपना निश क्रिएट कर सकते हो, अपना एक सेल्फ आप अपना एक एक्सपर्टीज क्रिएट कर सकते हो कि मैं वैल्यूएशन करता हूँ, बट मैं सिर्फ वैल्यूएशन IT कंपनीज का करता हूँ, या मैं सिर्फ डीप टेक का करता हूँ, या मैं सिर्फ AI रिलेटेड कंपनीज का करता हूँ. तो वहां भी आप अपना एक निश क्रिएट कर सकते हो, और जितना आप
एक्सपर्टीज जितना निश क्रिएट करते जाते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. The more expert you are in any field, the kind of fees that you can take is also completely, commensurate with the kind of expertise you bring on table. तो ये हमारा ट्रैक्शन के फील्ड पे है. तो अगर आप देखो तो मैंने राइट फ्रॉम आप आइडिएशन स्टेज से लेकर एमवीपी स्टेज से लेकर ट्रैक्शन तक कैसे एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम न्यू रोल्स अडॉप्ट कर सकते हैं, हम न्यू रोल में अपने क्लाइंट के साथ पार्टनर कर सकते हैं. और वापस मैं इस चीज को आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट they are not looking only for chartered accountants, they are looking for partners. उनको बहुत confusions रहता है, उनको बहुत questions रहते हैं. तो हमारा mindset ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा client है, मैंने उसको काम किया और मैं निकल के आ जाऊं. When you're working with them, they work 24/7 and they also expect us to be there for them 24/7, at least in spirit. For example, one of our client in Bangalore who is into real tech, उसको अगर कुछ भी they put a lot of hard work and sometimes उसने हमें 10:30 भी reach out किया है रात को कि I need this clarity and I want to get this registration done. So at least for his mental peace, we say कि we are there and we are going to do it for you. तो एक आपका जो एक mindset है ना कि मैं बस इतने से इतने, वो mindset यहाँ वर्क नहीं करता है. आपको बिल्कुल पार्टनर की तरह उनके साथ काम करना होता है और बहुत मजा आता है उनके साथ काम करके, बिकॉज आप बहुत ही क्रिएटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज को विटनेस करते हो, सॉल्यूशंस को विटनेस करते हो और आपको समझ में आता है कि कैसे द एंटायर वर्ल्ड इज चेंजिंग, द एंटायर ग्लोब इज चेंजिंग. लेट्स से इंडिया तो बहुत ही छोटा उसमें पीस है, कैसे हमारा इंडस्ट्री कैसे एक्सपैंड हो रहा है, कैसे नए नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, कैसे नए नए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. तो बहुत लर्निंग होती है, बट एट द सेम टाइम बहुत इसमें आप बहुत पैसे भी हैं फॉर अ सीए टू अर्न इफ यू कैन क्रिएट दैट निश फॉर योरसेल्फ. So I see a lot of roles and lot of opportunities, at least traction stage पे तो मैं बहुत opportunities देखती हूँ in startup space. मूविंग ऑन, जब वो स्केल अप करते हैं तो ऑब्वियसली एज आई सेड कि ट्रैक्शन के बाद जब वो इन्वेस्टर्स का मनी रेज करते हैं तो हमने ऑलरेडी बात कर ली कि हम उनको वैल्यूएशन में हेल्प करते हैं, हम उनको पिचिंग में हेल्प करते हैं, हम उनको ये देखते हैं कि कैसे वो कैसे वो ग्रो कर रहे हैं, हम उनके ग्रोथ फैक्टर्स को मॉनिटर करते हैं. जब वो स्केल अप हो जाता है, व्हेन आई से स्केल अप कि उनका रेवेन्यू नंबर्स इज माइंड बॉगलिंग. अब वो कोई छोटे मोटे स्टार्टअप नहीं रहे हैं, अब उनको वो अब वर्ल्ड मैप पे आ गए, उनको ग्लोबल वीसीज देख रहे हैं, वो उसमें पैसा डालना चाहते हैं. वहां पे हम उनको क्या हेल्प करते हैं. वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट कि हम उनको मैनेजमेंट रिपोर्ट जरूर मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के साथ उनको बहुत इनेबल एम्पावर कर देते हैं. तो आप लोग पूछेंगे मैनेजमेंट रिपोर्ट व्हाट इज द बिग डील, वी ऑलरेडी डू दैट. अगर आप किसी भी स्टार्टअप से बात करोगे और उनसे ये पूछोगे कि आपका पेन पॉइंट क्या है, कहाँ आपको लगता है कि आपको कोई अपने इन्वेस्टर से या अपने कंज्यूमर से बात कर रहे हो तो कहाँ आपको, तो वो आपको बहुत फैक्टर्स बताते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये कॉस्टिंग किया है तो इसके साथ ये क्या होना चाहिए, मैं ये चार्ज कर रहा हूँ, अगर ये टैक्स है तो ये टैक्स लगना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये जीएसटी लगना. तो वो अपना हम उनको ड्राइवर्स बोलते हैं, वो डिफरेंट ड्राइवर्स बताते हैं और हम उसके अराउंड डैशबोर्ड क्रिएट कर दें कि अगर आप एज अ मैनेजमेंट, as a board of directors or as a founder team, अगर आपको ये ड्राइवर्स अंडरस्टैंड करने में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हेल्प करते हैं तो हम नए डैशबोर्ड, हम नए उनको ड्राइवर्स के अराउंड पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं, जो रिपोर्ट्स उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है जब वो दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, जब वो नए इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, तो उसमें उनको बहुत हेल्प मिलता है, उनको उनके बहुत काम आता है. स्पेशली अगर हम कोई टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए, अगर वो कोई ई कॉमर्स स्पेस में है तो हर दिन आप देखोगे कुछ ना कुछ नया सर्कुलर आता है या कुछ, तो उनको अंडरस्टैंडिंग के लिए भी कैसे आपके बिजनेस को वो इम्पैक्ट करेगा, उस चीज को हम करते हैं. तो ये मैनेजमेंट रिपोर्ट्स की बहुत अहमियत बढ़ जाती है. और यहाँ पे क्या हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, हम जब मैनेजमेंट रिपोर्ट्स देते हैं तो हर मैनेजमेंट रिपोर्ट के लिए चार्ज करते हैं, बिकॉज देयर लॉट ऑफ एफर्ट गोज फ्रॉम आवर साइड इन अंडरस्टैंडिंग द ड्राइवर्स एंड गिविंग देम दोस रिपोर्ट्स. नाउ सेकंड इज वर्चुअल सीएफओ. आई थिंक ये तो वर्ड हम ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने नहीं सुना होगा. अगर नहीं भी समझते हैं लेकिन सुना तो जरूर होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन, एटलीस्ट इन स्टार्टअप वर्ल्ड, वर्चुअल सीएफओ आर द very कॉमन थिंग, एंड लॉट ऑफ कंपनी एंड इंडस्ट्री हैव बीन
created around it already. Now, what is a virtual CFO does? और कैसे एक नॉर्मल CFO से डिफरेंट होता है, एंड हाउ डज इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ CA to be part of this virtual CFO. Now, जब ये स्टार्टअप बनते हैं, जब ये ग्रो करते हैं, now they don't have lot of time and and bandwidth to get a CFO. वो बोलते हैं कि I have the money to pay, but I need a very very specialized guy who understand my business, who understand numbers. I am going to raise funds. I have these compliance. तो उसके बहुत डायनामिक नीड होते हैं, पर उसको पता है ये नीड मेरा साल भर रहेगा या 6 महीने रहेगा, जहां मुझे इतना डायनामिक बंदा चाहिए। तो वहां पे वो और जो अगर आप किसी पूरे फुल टाइम CFO के लेके तो उसकी कॉस्टिंग भी बहुत रहती है। आप एक कोई 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को और एनी फाइनेंस हेड को लेकर आते हो, they really come at a very very solid cost. वर्चुअल CFOs क्या होता है, वो वही एक्सपर्टीज लेकर आते हैं, पर बिकॉज दे आर वर्चुअल, और उनका क्राइटेरिया जो वो फॉलो करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं हर 7 दिन आई एम नॉट on full-time roles on with you. What I am going to do, I am going to commit you 3 days, 4 days, 2 days, depending on what is the requirement, and I am going to manage everything. तो इसमें क्या होता है, एक स्टार्टअप को कॉस्ट बेनिफिट मिल जाता है, बिकॉज ये वर्चुअल CFOs ऑफ कोर्स दे कम एट अ लिटिल डिस्काउंटेड रेट, बिकॉज दे आर नॉट स्पेंडिंग देयर फुल प्रोडक्टिव वर्क आवर्स विद दिस वन स्टार्टअप. इनफैक्ट दे वर्क विद मल्टीपल स्टार्टअप्स. वो एक बार में 3 से 4 से 5 स्टार्टअप्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ पे और इस स्टार्टअप को वो सारे बेनिफिट मिलता है जो एक नॉर्मल CFO को लेकर आते हो. तो यहाँ दिस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग इन लीप्स एंड बाउंड्स. आई कैन जस्ट गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट. अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगता है और आपको लगता है, एंड इसमें यू इट्स लाइक यू, मैं अगर बोलूँ तो मुझे लगता है कि ये तो ऐसा एक पॉट है जहाँ पे आप जितना डिग कर सकते हो, बिकॉज इसमें पैसे बनाने का कोई एंड नहीं है. यू वर्क ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, यू वर्क फॉर पर्टिकुलर टेन्योर एंड यू मूव टू, और एक बार आपकी क्रेडिबिलिटी बन जाती है एज अ वर्चुअल CFO, तो आपको बिफोर योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, यू आर देयर इज अ नीड इन अनदर स्टार्टअप, एंड दे ऑल ऑपरेट इन अ वेरी दे these startups interact with each other a lot. तो वो सब आपको देखते रहते हैं, आपने कैसे पूरे फंडिंग में हेल्प किया, कैसे आपने कंप्लायंस को केटर किया, तो आपकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है, एंड वर्चुअल CFO हैज लॉट ऑफ मीट इनटू इट. सो ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक वर्चुअल CFO का रोल बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, लेकिन बहुत वैल्यू एडिशन वाला होता है. अगर आप अपने आप को वहां प्लेस करते हो तो आप पैसे तो ऑफकोर्स कमाते ही हो, बट आपका जो नॉलेज लेवल होता है वो बहुत बहुत एनहांस हो जाता है. बट एज आई सेड अगेन, यू रियली नीड टू बी वेरी वेरी डायनामिक. ये आप बिल्कुल आई थिंक जो हम जितने भी वर्चुअल CFOs के साथ काम करते हैं वो इतने डायनामिक होते हैं कि आज वो चेन्नई में, कल वो दिल्ली में है, and they're always on the move, on the go, and they're really aware about what's happening in the startup industry. They are aware in what's happening in the funding industry. उनका बहुत solid contacts होता है. So this is a beautiful role that a CA can adopt, and can be a virtual CFOs, and you have lot of opportunity in this particular space. So ये on virtual CFOs पे हम बहुत इस पे हम what you say gain कर सकते हैं. Now another opportunity which I saw in startups when they were scaling up, जब वो scale up करते हैं तो if you generally see they are very on the go type of people. वो लोग बैठ के ऐसा नहीं है कि एक HR वो बोलते हैं, किसी बंदे को हायर करते हैं, उनका पहला एक्सपेक्टेशन ये होता है कि तुमको सब कुछ करना है, you need to do this also, do that also. वो क्या बहुत ऑन दी गो और बहुत डायनेमिक होते हैं, तो उनका कोई भी प्रोसेसेस बहुत सेट नहीं होता है, स्पेशली इफ इट कम्स टू अकाउंटिंग फाइनेंस. वहां वो लोग कोई भी चीज का ना प्रोसेस सेट नहीं होता है, और वहां पे मैंने देखा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जब हम देखते हैं कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, आप इन्वेंटरी मैनेज कर रहे हो, अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट में है, या आप अगर कोई ई-कॉमर्स बिजनेस में कर रहे हो, तो आपका कैसे पूरा प्रोसेस फ्लो होता है, जैसे कैसे आप राइट फ्रॉम गेटिंग द क्लाइंट को आप कैसे क्लाइंट पैसे दे रहा है, कैसे आप डिलीवरी कर रहे हो, तो इसका एक SOP लिख देने से क्या होता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बन जाता है. एंड लॉट ऑफ पीपल दे डोंट रियलाइज, इफ यू आस्क अ स्टार्टअप फाउंडर टू एक्सप्लेन, वो बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर देता है, बट he doesn't have time every time to explain it to every person who wants to understand their startup. That's where they expect, that is one place where I see
As a chartered accountant, we can barge in and write their SOPs. It is now writing an SOP takes a lot of time, because you really need to understand from the founder's perspective, from the management perspective, from the leader's perspective, and then you write it. It's a time-consuming process, but then after writing it, the clarity that of course we get clarity, but the kind of clarity that the startup get about their process is phenomenal. उनके लिए कोई भी नया हायर आता है, नया इन्वेस्टर आता है, वो उस SOPs को भेज देते हैं कि आप पहले मेरे कंपनी को समझने के लिए you can just read that how the entire SOP, how we operate, and this becomes a beautiful place where you need a lot of patience, but then the kind of the dogs that you create, that मतलब for some clients when we have created SOPs, वो SOPs हमने 2-3 साल पहले, 4 साल पहले भी बनाया था, but आज भी when we go to meet the client, they say we're still just upgrading those SOPs. So we feel very good that the kind of work that we have done for them, it's really beneficial, and they go on and on about how those SOPs have really empowered and educated them about their own processes. जो उनके दिमाग पे था सब पेपर पे आ जाता है. उसके बाद of course अब now as I said, there are so many startups that are coming up. हम इतने startups को देखते हैं, हम इतने startups आप देखोगे इंडिया में हर दिन एक नया स्टार्टअप आ रहा है, एक दिन में बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं. तो हर स्टार्टअप्स को तो आप केटर नहीं कर सकते हो, और हर स्टार्टअप आपके पास नहीं आता है, and what they do, they go to a certain stage and then they start becoming visible, and that's where आप देखते हो कि they're doing revenue of 2 crores 3 crores, but then उनका finance account completely mess है. और ऐसे cases हमारे बैंगलोर में with our clients we see lot of such clients, these young guys, 23-24-year-old या आते हैं, but उनके पास कोई नॉलेज नहीं होता फाइनेंस अकाउंट्स का, एंड दे आर कोई कहीं से उधर से करके ऑनलाइन हमारे बहुत स्टार्टअप्स है फाइनेंस अकाउंट्स के स्पेस में, बट व्हेन दे हैव सम क्वेरी फ्रॉम द डिपार्टमेंट दे डोंट नो व्हाट टू डू. और वहां भी उनको हैंडल करके उनके फाइनेंस और अकाउंट्स को हम स्ट्रीमलाइन करते हैं कि कैसे आप इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग एड हॉक थिंग्स, व्हाई डोंट यू स्ट्रीमलाइन द एंटायर प्रोसेस. सो this is what I feel. In a nutshell, अगर जो मैंने 4 stages of startup बताया है, इस चारों stage of startups में आप कैसे उनके साथ पार्टनर कर सकते हो, कैसे opportunities है, और कैसे आप उनके साथ उनका ग्रोथ या आप कैसे सेल्फ ग्रोथ भी कर सकते हो, अपना निश क्रिएट कर सकते हो. So this is what I thought is about startups. ईशा, अगर हम चाहें तो हम इस पे अभी questions ले सकते हैं right now, और या फिर मैं I can move on to the next topic. निशा, I think हमारे questions आए हैं 3-4. So first let's take up the question, right? इस topic पहले discussion कर लेते हैं. हाँ. Okay. First question is from Nitika Bapna. She's asked, isn't it would be expensive for startups to afford professionals to ask them coming for presentation to investors? As being at early stage, they don't have funds, so they would resist it. How to deal with this situation? Okay, so नितिका, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे I was also mentioning कि हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज होना चाहिए. सी आप जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, these are young startups, तो हो सकता है इनिशियली आप पैसे इतने नहीं कमाओ. जब वो आपको पहली बार प्रेजेंटेशन के लिए लेकर जाए, आप भी सोच सकते हो कि मैं जा रही हूँ, इसमें मेरा क्या बेनिफिट है. या एज अ प्रोफेशनल हमें बहुत ही स्मार्ट प्ले करना पड़ता है कि अगर हम जा रहे हैं, तो मैं जब इनिशियली जाती थी इन्वेस्टर्स के प्रेजेंटेशन के लिए, तो मैं देखती थी कौन सा इन्वेस्टर है, कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज है, और मुझे इसकी कितनी नॉलेज है. अगर मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे लगता है इस इंटरेक्शन से मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में नॉलेज बहुत एनहांस होगा, तो मैं कितनी बार मैंने तो प्रो बोनो जाके मैंने इन्वेस्टर्स पिचेस को अटेंड किया है. तो आप देखो कि आप, और मुझे लगता है कि इस बंदे में बहुत पोटेंशियल है, और अगर जब वो ग्रो करेगा, तो आज हो सकता है मैं उससे इतना फीस चार्ज नहीं करूँ, लेकिन जब वो ग्रो करेगा और जिस भी स्टार्टअप ने जिस भी प्रोफेशनल को उसके साथ पार्टनर किया है, आप उसकी एक बोलते हैं ना, आप उसके फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड जैसे बन जाते हो. You're just not a chartered accountant, not only a professional. You have to be their, buddy, or you have to be their partner. So वहां पे आप कॉल ले सकते हो कि अगर उसको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आप बोलो यार देखो ऐसा है. इनफैक्ट बहुत ही क्रिएटिव तरीके से आप उस चीज को डील कर सकते हो. आप बोलते हो देखो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा हर इन्वेस्टर्स के पिच में, जिस दिन तुम्हारा ये क्रैक हो जाएगा, the day you get the deal, then instead of giving me
For example, 30,000, you give me 0.5% of whatever money you got. तो उसमें आपको भी लगता है चलो आपका नॉलेज एनहांस हो रहा है, और उसको भी एक्सपेंसिव नहीं लगता, उसको लगता है ठीक है जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब मुझे पेमेंट करना है. और या फिर आप फिक्स्ड और वेरिएबल मॉडल भी रख सकते हो कि फॉर एवरी मीटिंग यू पे मी समथिंग बिकॉज आई एम कमिंग एंड स्पेंडिंग माय टाइम, बट वंस यू कन्वर्ट यू गिव मी सम सक्सेस फी, यू नो वी कॉल इट इन अ वेरी वेरी सिंपल टर्म सक्सेस फी. सो ये वो इनफैक्ट बहुत खुश होंगे अगर आप उनको ये सब creative offers दोगे, you know, because as I said, most of these are techies and they are very scared of numbers. और जब investor के पास जाते हैं, investors उनको grill करने लगता है numbers पे ना, they really feel it very empowered when a chartered accountant is sitting with them, the guy who has prepared the financials. So आपको creatively सोचना पड़ेगा what works for you. I hope I answered your question. Nitika, I hope your queries are answered. Yeah, it's answered, and it's really very creative way. When we give many feedbacks, many options, they think over it, and the ball is then in their court. So it is good for us also. Thank you. Absolutely. And you know, again, just for the benefit of you know, my dear chartered accountants, we also need to understand that it's a different world altogether. एक हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट से हमको भी एक स्टार्टअप के माइंडसेट के जैसे सोचना पड़ेगा, यू नो, तो हमें भी अपना वो माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा कि हम एक ट्रेडिशनल वे चार्टर्ड अकाउंटेंट के वे से ऑपरेट नहीं कर सकते. वी आर यू नो व्हाट वी ऑफ कोर्स जो कंप्लायंसेस करना, अकाउंट्स करना, वो हम करेंगे, बट हम ये न्यू एज स्टार्टअप्स के साथ हम कैसे पार्टनर करके रोल प्ले कर सकते हो, कैसे उनके ग्रोथ को और अपने ग्रोथ को एम्पावर कर सकते हैं. Okay. Next question, Nisha, is from Sanjay Gupta. He has asked that are there any list of specified items that are covered under startup? नॉट रियली संजय जी. अगर आप जाके अगर वेबसाइट पे देखोगे तो वो बोलते हैं कोई भी आप कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विसेज हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप के वेबसाइट पे लिखा रहेगा वो बोलेंगे आप कुछ भी लेके आओ, पर वो बोलते हैं हमारा क्राइटेरिया बहुत सिंपल है. आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज लॉन्च कर रहे हो, लेके आ रहे हो हमारे पास कि हम उसको एक डिप सर्टिफिकेट दें, हम उसको एक स्टार्टअप का टैग दें हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वो क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक और कॉफी शॉप खोल दी, ओके, उसमें कुछ इनोवेटिव नहीं है, क्रिएटिव नहीं है, ठीक है ना, पर मैं वही बोल दूं कि मैं उस कॉफी शॉप में मेरे सारे जो भी एम्प्लॉइज रहेंगे, उसमें मैं एम्प्लॉइज रखूंगी नहीं, मेरे सारे रोबोट्स रहेंगे, यू नो, हु विल सर्व. और मैं यू नो 50 वेरियस तरीके के यू नो मैं कॉफी दे सकता हूँ. तो द एंटायर थिंग इज कंप्लीटली टेक बेस्ड. उसमें एआई को मैंने इन्वॉल्व कर दिया कि मेरा कस्टमर जैसे ही आएगा, मैं कस्टमर का प्रोफाइल लेके समझ जाऊंगा कि अगर ऑफिस के बाद आया तो उसको स्ट्रॉन्ग कॉफी चाहिए, वो अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया तो उसको एक अच्छी सी कॉफी चाहिए. तो अगर आप उसी चीज को आप एक टेक का यू नो एंगल दे देते हो, वो तो अगर आप ऐसे पूछोगे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक दे हैव सेड कि नहीं मैं सिर्फ इसी को स्टार्टअप बोलूंगा, इसको स्टार्टअप नहीं बोलूंगा. क्रिएटिव होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, स्केलिंग अप की उसमें बहुत वायबिलिटी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ पे जाके रुक जाओ, उसमें ये पोटेंशियल होना चाहिए कि उसको अगर फंड मिले और राइट मार्केट मिले तो बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सके. So I hope Sanjay ji I answered your question. Sure ji, thank you. Thanks. Okay, Nisha ji, we have a lot of questions floating in. Can I just take what I want, which I feel is a different? Sure. I ले सकती हूँ. ईशा जी, एक और मेरा क्वेश्चन था. हेलो ईशा जी. हाँ जी, बोलिए. एक बार लिस्ट, if there is list of benefits through startup, any list is there? लिस्ट संजय जी, अगेन अगर आप देखोगे आप उसको मैं आपको एक स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट से निकाल के वो लिस्ट भेज देती हूँ, आप खुद भी जाके देख सकते हो. लेकिन अगर आपको हेल्प होता है तो मैंने अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए मैंने एक लिस्ट बना रखा है कि आप स्टार्टअप में जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो अब क्या क्या आपको बेनिफिट्स अवेलेबल हो जाते हैं. तो वो मैं लिस्ट आपसे जरूर शेयर कर लूंगी. कोई डिफरेंट लिस्ट नहीं है, वो मैंने ये शेयर जरूर शेयर कर लूंगी. मैं ईशा के साथ शेयर करूंगी, ईशा सबके साथ शेयर कर सकते हैं. Sure. Thank you. Isha, I can't see questions. I don't know why. Please go to question and answers. Acha, okay, sorry. Okay, I was in the chat. Okay.
Okay, as a partner, a lot of apply issue clears my still need to get a stage of digital paper. Okay, client wants to consider them to move to some other concern how to meet on the Neha, I think brilliant question. In fact, ये तो बहुत कॉमन है. आप जैसे हम जब हमारे पास क्लाइंट आता है हम उसको बोलते हैं कि जब वो अपने प्रॉब्लम्स लेके आता है, they come up with the problem and we say कि when you want the answer, they say I wanted this answer yesterday. So वो हमेशा, as I said, their mindset is कि उनमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट होता है कि आपके पास पेशेंस है क्या, वो उनके पास पेशेंस नहीं है. और as you rightly said that every startup is a unique startup and every product or services is unique. तो जहाँ उनको इंस्टेंट कंसल्टेशन चाहिए होता है, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जो हमको नहीं आता है, जो हमें नहीं पता है, वी शुड बी वेरी अपफ्रंट एंड ट्रांसपेरेंट विद द क्लाइंट सेइंग दैट वी डोंट नो अबाउट दिस और वी हैव नॉट डन दिस, बट we would like to do this and we would like to partner with you in this. So अगर उसी उनको क्या लगता है कि ऐसा नहीं हो कि मैं आपके साथ उनको अपने को ये कॉन्फिडेंस देना है कि सी आई एम ऑल्सो, आप भी स्टार्टअप हो और मैं आपके साथ पार्टनर करना मेरे लिए भी बहुत नई चीज है, बट आई विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट यू रिक्वायर एंड व्हाट यू डोंट रिक्वायर. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग नेहा, अगर आप एक बार करने लग जाओगे ना, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कुछ ना सेम रहता है इररेस्पेक्टिव स्टार्टअप. ठीक है ना. आप अगर उसको बहुत बेस लेवल पे देखोगे ना, जो ट्वीकिंग आता है, जो आता है वो बहुत आफ्टर पॉइंट अगर आप काम करने लग जाओगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि जो वेरिएशन जो अपना बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में आपको सब कुछ बहुत डिफरेंट डिफरेंट लगेगा, पर आप जब नंबर ऑफ स्टार्टर्स के साथ काम करने लग जाओगे तो आपका बेस लेवल पे बहुत चीजें सेम रहती है. ठीक है ना. और वो जब आता है तो अब वो कंसल्टिंग जो मांगता है वो बहुत बेस लेवल पे मांगता है. तो जैसे स्पेसिफिक हुआ, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर कोई रियल टेक का बंदा आया, कोई स्टार्टअप आया, हम एक्सपर्ट नहीं है रियल टेक में, अगर एडुटेक का है हम एक्सपर्ट नहीं, बट हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास सिमिलर क्लाइंट्स है जो फिनटेक में है, जो फूड टेक में है, तो उसी का मॉडल हम उसमें अप्लाई करके बोलते हैं कि ये चीज है, बाकी आपके केस में वी हैव नेवर वर्क बट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हाउ डू वी गो अबाउट इट. So I think it's all about how confident you are, how much you want to learn, and how much confidence you give to a client. कि भाई हाँ, अगर आप मेरे साथ हो तो मैं अपनी तरफ से कोई स्टोन अनटर्न नहीं करूंगी. और ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे फॉर अस एज अ सीए, that we go and start finding out who are the people who are expert in this. I interact with so many other CAs, who are working with other startups, and you get a lot of inputs when you interact and network with other chartered accountants in the field, because you can work only with these many startups, but there are so many CAs who are working with different startups. तो यहाँ पे आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना पड़ता है अपने फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स का, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, जो डिफरेंट क्लाइंट के साथ काम करने. तो आपको जरूरत होती है तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू देम एंड दे कैन आल्सो कम टू यू व्हेन दे नीड हेल्प. सो आई थिंक अगर आप उस पर सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत होती है, ये बताना की जरूरत होती है कि आई एम देयर फॉर यू एंड आई विल support you in whatever way I can, as long as it within the compliances and in my knowledge limit. So I think कोई client आपको छोड़ नहीं जाएगा. इतना कॉन्फिडेंस दे दोगे, बेचारा ऑलरेडी बहुत डरा हुआ रहता है, वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, तो आई थिंक इतना बोल दोगे तो काफी है उसके लिए. नेहा, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है. आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो यही आपका सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है. आपके पास कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होने आती है, आपको ये समझना है कि एक एलएलपी और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या डिफरेंस है, और आप उसको एक्सप्लेन करो. तो यहाँ पे आपको कोई एडिशनल, और यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको बाय डूइंग आएगा. व्हेन आई स्टार्टेड लुकिंग एट स्टार्टअप्स, मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था. इनफैक्ट मैं बहुत वेबिनार अटेंड करती थी, मैं बहुत जहाँ कुछ कोर्सेज होते थे वो सब करती थी. तो इसमें ऐसा कुछ आप when you start working with them, there is no rocket science. You don't have to launch the products or services with them. You just need to understand the financials around them. वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्ट्रेंथ होता है, नंबर्स को समझना. बस आपको उस नंबर्स को समझने से उस चीज को रिलेट कर देना है उसके बिजनेस. सो आप जितना करोगे आपको ऑटोमेटिकली एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली आता जाएगा. आपको कुछ भी आउट ऑफ वे जाके नहीं करना. What are the opportunities provided by government to CAs in MSME through digital means?
सी आप एमएसएमई तो कोई भी रजिस्टर हो सकता है एज अ सोल प्रोप्राइटर, एज अ आई रन अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, माय कंपनी इज रजिस्टर्ड इन एमएसएमई। तो ऐसा कोई अलग से कोई जितना मुझे जो जितना लिमिटेड नॉलेज मुझे है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्पेशल राइट्स या प्रिविलेजेस दिए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि तुमने फर्म खोला है तो तुमको अलग से कुछ वो मिलेगा। एमएसएमई में रजिस्टर करना आप कैसे भी कर सकते हो। A company operator, okay. Anonymous attendee. मैं आपको इस चीज पे आई विल हैव टू गेट बैक टू दिस, आई हैव टू चेक ऑन ऑल दिस सेक्शंस बिफोर कमेंटिंग ऑन इट, बिकॉज आई वोंट बी राइट। मैं अगर कुछ भी बोल दूं यहाँ पे और अगर कुछ भी इधर उधर हो जाएगा, इट विल नॉट बी राइट। आई विल डेफिनेटली कम बैक विद द आंसर। मुझे को एक बार चेक करने दीजिए, देन आई विल गिव यू द आंसर। Any other question that we have, Isha? Any other questions? In fact, anybody, they can just unmute and ask if they have any question. I don't know whether that possibility is there or not. Anyways, I think. Hello. Yeah. I want to ask you something like regarding shareholders agreement. Like you said that we can go creative and create it, but can you share with us some standard template of shareholders agreement which you use and which is also productive, so that on that basis we can go more creative with it? That Sure, would be. I will. I can definitely share, Nitika. In fact, आप मतलब अभी तो I can share some of my shareholder agreement जो हमारे client के लिए हमने draft किए हैं, ठीक है ना? Which I will remove the confidential part of it and you can go through it. अगर आप कोई भी shareholder agreement अगर आप go through करोगे ना, आप Google पे भी देख सकते हो, जो मैं भेजूंगी वो भी देख सकते हो, तो बहुत कुछ उसमें standard रहता है, you know. पर बहुत, as I said, you know, every shareholder agreement will always have something very creative into it. So वो डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस। बट अगर आप कोई भी एक इफ आई से कि एक ऑफ राइट कुछ स्टैंडर्ड्स रहता है जो कि आपको हर शेयर होल्डर एग्रीमेंट में मिलेगा। सो आई विल जस्ट मेक अ नोट ऑफ टोटल आई नीड टू सबमिट लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स। आप लोग पूछ रहे थे एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट का फॉर्मेट मैं आप लोग से जरूर शेयर कर लूंगी लतिका, शेयर होल्डर एग्रीमेंट फॉर्मेट में। और आप जाके देखोगे, यू नो, इनफैक्ट अगर आप गूगल भी करोगे तो आपको बहुत अच्छा कुछ लोगों ने डाला हुआ है अपना शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स, तो देखोगे तो आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा कि कैसे एक ब्यूटीफुल तरीके से आप फंड रेज करते हो और फंड को यूज करते हो। आई विल डेफिनेटली शेयर some formats that I have. Yeah, thank you. I think, Nisha, that is all for the questions. Yeah. So I think if that is all for the question, you know, because we have so many members here and I thought it would be a good opportunity. अब मैं जैसा कि मैंने बताया कि मैं बहुत फोरम्स पे जाती हूँ, मैं बहुत स्टार्टअप से मिलती हूँ और बहुत जगह बहुत I network a lot and somehow I realize that, you know, कि हम CAs हम बहुत काम करते हैं, our knowledge is like, you know, is immense, but somehow I don't want to use branding, but कितनी बार clients को पता ही नहीं रहता है कि वो किसके पास जाए, you know, it's either they come to you. So I always you know, tell this that, you know, as a chartered accountant we have already nobody questions on our basics, nobody you know, question on our fundamentals, but it is very important, you know, जो हमारा knowledge है वो हम share भी करें, you know, and there are so many professional platforms, you know, like LinkedIn, or I don't want to name anything, but कितने platforms है जाके आप अगर कोई चीज में niche create कर रहे हो, कोई चीज में आप expertise create कर रहे हो, तो आप उस knowledge को enhance करो। उससे दो benefit होते हैं। Of course, आप जब कोई चीज share करते हो तो आपको बहुत inputs मिलते हैं, आपको जो दूसरे professionals होते हैं वो भी अपना perspective share करते हैं, वो बताते हैं कि वो क्या चीज सोचते हैं उसके बारे में। और दूसरा क्या होता है, एक अवेयरनेस क्रिएट होता है लोगों के बीच में कि ओके वो एक एरिया ऑफ एक्सपर्टीज
है जो आपका है. I think there were somebody asking कि how should we get into this. So very simple. आप कोई भी टॉपिक पकड़ लो, आप पिच डेक ही पकड़ लो, एक अंडरस्टैंडिंग into what kind of entity और वैल्यूएशन, कुछ भी चीज आप पकड़ के ना आप उस पर आप नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट कर दो डिफरेंट प्लेटफॉर्म से. जैसे आप नॉलेज शेयरिंग स्टार्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक अपने आप में आपका अंडरस्टैंडिंग बनता है. आप फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ, फेलो प्रोफेशनल के साथ इंटरेक्ट करते हो, और फ्रॉम द क्लाइंट पर्सपेक्टिव और फ्रॉम द फाउंडर्स पर्सपेक्टिव वो भी जानने लग जाता है. बिकॉज ये फाउंडर्स बहुत ही टेकीज है. ये आपको हमेशा सोशल मीडिया, इनको कुछ भी ढूंढना होता है, कोई भी काम करवाना होता है, ये पहले जाके गूगल करते हैं, पहले जाके लिंक्डइन चेक करते हैं. तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक सोशल प्रेजेंस हमें जरूर बनाना चाहिए, जो मैं बहुत सीरियस में हो सकता है आप करते हो. आई एम नॉट arguing on that, but what I feel कि वो एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे मैं देखती हूँ एज अ सीए हमें बहुत वर्क करना है. बहुत हमारे पास बहुत पोटेंशियल है वहाँ ग्रो करने के लिए, और ऑटोमेटिकली एक हमारा अवेयरनेस क्रिएट हो जाता है कि हम किस फील्ड में ऑपरेट कर रहे हैं. अगर आप देखोगे तो बहुत ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है जो ये काम कर रहे हैं, और आप देखोगे तो उनका एक एक्चुअल में निश उनका क्रिएट हो चुका है कि वो इस चीज के लिए जाने जाते हैं. तो आई थिंक एक ये चीज आप लोग जरूर कीजिएगा अगर आप स्टार्टअप इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहते हैं. यू सी दैट लॉट ऑफ रोल दैट यू वांट टू प्ले इन दिस. आपका सोशल प्रेजेंस, सोशल मीडिया प्रेजेंस जरूर होना चाहिए. बहुत मजा आता है करने में. आप बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है, आप लोगों को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं. इनफैक्ट आई डोंट नो, आज मैं आप लोगों से इंटरेक्ट भी कर रही हूँ. आई थिंक ईशा would have seen my social profile और LinkedIn profile. मैं ईशा को नहीं जानती थी, but being on the social media, sharing my knowledge on different platforms gave me an opportunity to interact with such learned people like you. So बहुत मजा आता है ये करने में. और एज अ सीए हम ये माइंडसेट से निकलना पड़ेगा कि हमने नॉलेज शेयर कर दिया तो वो क्लाइंट हमारे पास क्यों आएगा. नहीं, जहाँ जितना आप दोगे आपके पास 10 टाइम्स और क्लाइंट्स आते हैं. ये मेरा experience है. So I think as a fraternity we should come out from that shell of thinking that we should not go open and share our knowledge. भाई लोग हमारा नॉलेज लेके चले जाएंगे, नहीं. जितना आप नॉलेज शेयर करोगे उतना आपका सेल्फ नॉलेज एनहांस होता है, उतने आपके पास क्लाइंट्स भी बढ़ते हैं. तो बिल्कुल आप बोलते हैं ना, हम एक सीए मेंटालिटी रहता है कि क्या कोई भी चीज जो मेरे टर्नओवर को और जो मेरे पैट को टच करे उसमें मुझे हाथ डालना चाहिए. तो ये वही है. या आपका टर्नओवर तो रेज होगा इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंस, एंड आपका पैट लेवल 100% इंक्रीज होगा. So I think on that note, I think I am done for the session. अगर और कोई questions है तो I would love to take it. I kept it for around 100 minutes, and I think I'm done with my 100 minutes. Thank you, Nisha. And it was a great session, Nisha ji. It was really informative. The new opportunities for CA in the new startup ecosystem. I hope all the attendees gained a lot with this session. Moving further, I would like our regional council member, CA Akash Bargoti ji, for a vote of thanks. Thank you, Isha. And first of all, I would like to have this opportunity to thank ma'am for giving such an insight कि कैसे startups को काम करते हैं, क्या opportunities है for a chartered accountant. And I think आज के time पे जहाँ every chartered accountant is in dilemma कि हमको क्या करना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस कहाँ मूव हो रही है. एंड इस डिलेमा में you are giving an opportunity because I think this is the time where हम नए प्लेटफॉर्म्स, हम नए जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है उससे थोड़ा सा मूव करें एंड अपनी जो ट्रेडिशनल एबिलिटीज है. एंड आई थिंक निशा मैम ने अभी बिल्कुल राइटली सेट किया, हमारी जितनी भी एबिलिटीज है वो सिर्फ काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, बाकी सेम चीजें हैं. सेम आपको वैल्यूएशन में भी सेम रूल्स रखते हैं एंड स्टार्टअप्स में भी सेम कंप्लायंसेस हैं. एंड अपन को बस थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की बात की जरूरत है. And really thankful to Nisha ma'am for providing her अपना बहुत precious time हमको CIRC में दिया. And I would also like to thank Abhay Chajed sir, our Central Council member. He accepted our invitation from CIRC to be chief guest.
And also thankful to our chairman Atul Mehrotra sir. जितने मेहनत वो करते हैं CIRC के एक एक प्रोग्राम को बनाने में, आई थिंक, एंड इट्स हिज विजन जो हम फॉलो कर रहे हैं. तो थैंक यू अतुल सर, फॉर conceptualizing this सीरीज, वुमेन ऑन वेडनेसडे सीरीज, जहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि हम हर मंथ में 2 वेडनेसडे और प्रोबेबली 3 या 4 वेडनेसडे हम ट्राई करेंगे कि हम वुमेन्स पे ऐसी एक्टिविटीज करते रहें. तो थैंक यू एवरीवन. एंड थैंक इन यू लास्ट, आकाश भाई. थैंक यू आकाश भाई, हाँ जी. मेरा ये एक निवेदन ये था कि हमारे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. वी कैन गो फॉर एवरी वेडनेसडे. For that, I have also floated a message with different groups that Okay. our female members who are interested for any topic, for moderating or even for joining as a session chairman, this is a forum which is the CIRC. This program WoW series is open for all the women of the family from entire CIRC. There is no any hurdle there. If anyone is interested, please feel free to call me or to Akash ji or to our Lokesh bhai, or you just simply mail to circ@ici.in that you are interested for joining this our WoW series, and so that it may be easier for all of us to have different views, different speaker from our region or even outside the region as well. So and this I interrupted you, sir. Please continue, Akash bhai. वंडरफुल सर. एंड ऑल्सो आई विश अतुल सर कल CIRC, पूरी CIRC की टीम को RRC लेके जा रहे हैं फुकेट एंड कराबी. सो ऑल द वेरी बेस्ट सर, बेस्ट विशेस फॉर योर ट्रिप. एंड आई एम रियली सॉरी मैं ज्वाइन नहीं कर पाया ड्यू टू सम, बट ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी. And also in the last, I would like to thank Isha ma'am. Moderating such a session is not an easy task. So thank you, Isha ma'am, for moderating such a nice session. Thank you everyone. Thank you all the participants for joining the today's event. Right. Thank you, sir. Thank you so much for having me. Thank you, Atul ji, Abhay ji, Akash ji, and of course, special thank to Isha. You really rocked it. Please share. Thank you, ma'am. We had a great session.